नेटवर्क का इश्यू चल रहा है। ओके मैं मुंह दिखाऊंगा, आपका ये शटर बंद हो जाएगा। तो हम लोग तो नहीं चाहते ये सब चीज। कोई प्रॉब्लम नहीं। গোপীনাথজির সাথে কথা হলো, উনি জয়েন করছেন। বলেছি জয়েন করতে, এখনই জয়েন করবে না। এই যে ও আপনি বাংলা বলেন সুনীলজি, তাহলে ঠিক আছে। হ্যালো প্রতীক সাহেব। হ্যাঁ দাদা, এই যে আমি। হ্যাঁ হ্যাঁ, হ্যালো 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 Hello sir. আমি স্যার। Good evening sir. Good afternoon. গুড ইভিনিং গুড ইভিনিং गुड आफ्टरनून गोपीनाथ जी। গুড বলছিলাম। আফটারনুন। বলিয়ে হ্যাঁ বলুন। আমি কলকাতা থেকে কিন্তু, হ্যাঁ, বাট অ্যাকচুয়ালি আচ্ছা মিস্টার শক্তি আই এম সরকার। ট্রাভেলিং, আই এম আ ট্রাভেলার। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। আমি রত্নেন্দ্র বোধহয় এখন কলকাতাতেই আছে, আপনার সাথে যোগাযোগ করেছি না কে জানে। এখনো করেনি, ওর বোধহয় 28 তারিখে একটা রয়েছে আপনার, ওই কি বলে প্রোগ্রাম আছে, আমাকে ওতে যেতে বলেছে। সো দাদা, আমি বেসিক্যালি আমি তো সফটওয়্যার লাইনে ছিলাম আর এখনো আছি, নিজের কাজ আছে। আর্যপ্রিয় আমার বন্ধু আর আমার ভাইও। তো আর্যপ্রিয় সাপ্লাই চেন লজিস্টিক্স এর খুব পুরনো, মানে ফ্রম আ বিজনেস সাইড, নট ফ্রম আ সফটওয়্যার সাইড। তো যখনই কোনো লজিস্টিক্স কি কোনো রিলেটেড সলিউশনস এর যখন when we talk about that, we'll talk in Hindi because कौशल या नो नो। हाँ, तो जब भी कोई सप्लाई चेन या ऐसा कोई बात होता है, so I include आर्यप्रियो। So that's why, because a domain टा बिचन specific domain, so I thought कि let me include him from a domain perspective, and Kaushal ji is our software person who will show us the product demo. Okay. And Gopinath ji is the founder, CEO. Gopinath ji is an inspiration to all of us. He's the owner of No, the no, company. not like that. And Sunil ji looks into the software part of the software. What he told me, what I know, he looks after it. Mr. Chatterjee is also here. He is also looking after our IT department. Okay, thank you. Yes. Yeah, let's start. So you do one thing, Ajyopriyo. You do one thing. You first give a gist, and then for few minutes, and then Kaushal ji can start with his gist and the software. अच्छा, ओके। गुड आफ्टरनून गोपीनाथ जी एंड गुड आफ्टरनून मिस्टर चक्रवर्ती। Good afternoon. Let me introduce Kaushal from Manpush. Manpush actually is our this thing API related to the software related to inland knowledge. कौशल जी, आप कोई म्यूट कर दो, बहुत ज्यादा आवाज आ रहा है आपका पीछे या कोई। Yeah, thank you. So Kaushal will give you the demo related to your inland. I believe first of all, Gopinath ji, हम लोग को पहला जानना क्या है, what is your requirement on this basic, because see, I am into offshore and onshore both, international and domestic, starting to end-to-end solution. You are mute, Mr. Gopinath ji, I suppose. Gopinath ji, you're mute, I suppose. We can't hear you. Sorry. Yes. ठीक है, now am I audible? Yes, sir. মিউটটাকে একটু এবার করতে হবে। हाँ हाँ। Actually, I'm just briefing a short thing, what is exactly required by our company. Okay. तो first of all, हमारा जो कंपनी है, ये कंपनी 3 टाइप का काम करता है। एक ट्रेन एंड एयर मूवमेंट करता है, सेकेंडली सरफेस मूवमेंट करता है। ये तीनों टाइप का मूवमेंट हमारा होता है, ठीक है। तो फर्स्ट जो एयर कंसाइनमेंट जो है, ट्रेन कंसाइनमेंट, उसका बारे में मैं पहले बात नहीं कर रहा है। पहले जो बात कर रहा है, जो नॉर्मली सारे लॉजिस्टिक कंपनी का जो ऐसा होता है, उसके बारे में बता रहा है। तो क्या ना, आई हैव लॉट्स ऑफ कस्टमर, कॉर्पोरेट कस्टमर, कुछ मल्टीनेशनल कंपनी भी है, जैसे अमेरिकन है, कोरियन है, जापानीज है। इनका जो वेयर हाउस है, वो वेयर हाउस में हमारा डेली पिकअप का प्लानिंग रहता है, क्योंकि उनका साथ मेरा एग्रीमेंट रहता है। तो एक मास्टर डेटा मेरे को चाहिए। मास्टर डेटा में हमारा क्या ना, सारे कस्टमर एंड उसका रेट वगैरह सब कुछ इनपुट हो जाएगा, ठीक है। जो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो मास्टर में सारे एंट्री हो जाएगा। ये फर्स्ट रिक्वायरमेंट जो है। एंड उनका जो लोकेशन है, ऑल इंडिया का जो लोकेशन है, लोकेशन उसका अंदर में रहना चाहिए। ओके।
मतलब पिन कोड वाइज हर एक ऑल ओवर इंडिया का लोकेशन रहना चाहिए। ओके, अभी ऑपरेशन पार्ट में मैं पहले बात कर रहा है। ऑपरेशन कैसे होता है, हमारा एग्रीमेंट साइन हो गया कोई कस्टमर से, कस्टमर मेरे को एग्रीमेंट बना दिया, उस हिसाब से मैं मास्टर फाइल को क्रिएट कर लेंगे। ये सो कस्टमर ABC कस्टमर, उनका ये एड्रेस है, ये GST नंबर है, ये पैन नंबर है, उनका ये ऑफिशियल मेल आईडी है, थर्ड ऑफिशियल मेल आईडी का उसका एक कॉन्टैक्ट पर्सन, एक कॉन्टैक्ट नंबर है जो SMS के लिए जाएगा, जो ऑफिशियल SMS नंबर तो ऐसा बहुत सारा रहता है। तो ऐसे पूरा डिटेल्स रहेगा। मास्टर डेटा फिलअप हो गया तो उनका साथ उनका जो रेट चार्ट है वो रेट चार्ट भी उसका अंदर में हम लोग इंक्लूड कर देंगे। ठीक है, अभी हो गया मास्टर फिलअप। अभी वो कस्टमर का पिकअप के लिए आदमी जा रहा है। उनका पिकअप पॉइंट मान के चलिए धूलागढ़ में उनका वेयर हाउस है, हमारा आदमी चला गया वहां पे। तो वहां पे मेरा कोई मैनुअल कंसाइनमेंट नोट नहीं रहेंगे, ऑटोमेटिक कंसाइनमेंट नोट चाहिए मेरे को। मतलब हमारा जो एलआर होता है, जिसको एलआर भी बोलता है, डॉकेट भी बोलता है और कंसाइनमेंट नोट भी बोल सकता है। ठीक है ना, तो हर एक आदमी हर एक टाइप का बोलता है। तो कंसाइनमेंट नोट जनरेट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है, कंसाइनमेंट नोट जब भी जनरेट हो जाएगा उसका साथ साथ उसका जो स्टिकर है वो स्टिकरिंग भी हो जाएगा। मतलब स्टिकर निकल जाएगा। तो अगर 50 कार्टन माल है, 50 कार्टन का सो एंड सो डॉकेट नंबर का अगेंस्ट में 50 कार्टन, 50/1, 50/2, 50/3, 50/4 ऐसा करके हो जाएगा और वो स्टिकरिंग मेरा कार्टून में लग जाएगा। ठीक है, समझ गया? थोड़ा बताइए तो मैं गोपीनाथ जी, I totally understand your requirement. So Kaushal ji, समझ रहे हैं सर, समझ रहे हैं। so Gopinath ji, one thing I would like to ask you, you are not into fleet management, that's no, right? Yeah, I am also fleet management. I am also in the fleet management. Let me finish first. Let me finish first. Yeah. Okay. तो then मेरा मटेरियल वहीं से कोई गाड़ी में लोड हो गया, ईओए बिल ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा उस गाड़ी के अंदर में। वो गाड़ी का नंबर दे करके ईओए बिल जनरेट हो जाएगा। ठीक है, राइट सर। तो अभी क्या है, वो गाड़ी मेरा हाफ में आएगा। मतलब हमारा समझ गया सर। हेलो, समझ गया सर। समझ गया। वो क्या ना हमारा हाफ में आएगा। तो हाफ में जब भी आएगा तो वो हाफ उसको रिसीव करेगा, वो स्कैन करके रिसीव करेगा। मतलब वो कंसाइनमेंट नोट जो आया है उसको स्कैन करके, इंड स्कैन करके उसको रिसीव करेगा। तो उसमें पूरा वो मतलब उसको पहले जब भी पिकअप आ गया है तो मेरा हाफ में भी एक इंफॉर्मेशन आ गया जब ये मटेरियल इस कंपनी से पिकअप हुआ। ऐसा 10 कंपनी से पिकअप हो रहा है तो 10 कंपनी का डिटेल्स हाफ मैनेजर के पास आ जाएगा। समझ गया ना? तो उनको पता चलेगा हमारा ये रूट का ये मटेरियल आ रहा है। तो फिर इंस्कैन करेगा, गोडाउन में इंस्कैन हो गया। इंस्कैन के बाद वो क्या ना बैगिंग करके आउटस्कैन करेगा, बैगिंग करके आउटस्कैन करेगा। ठीक है, आउटस्कैन करेगा रूट वाइज। मतलब कलकत्ता में हमारा हब में माल आया, एक गाड़ी जाएगा दिल्ली, एक गाड़ी जाएगा बॉम्बे, एक गाड़ी जाएगा सिलीगुड़ी, एक जाएगा रांची, एक पटना, अलग अलग सेपरेट बैगिंग होगा। ठीक है, वो बैगिंग का हिसाब से वो मटेरियल्स भी आपको इंस्कैन होगा, फिर उसको आउटस्कैन करना पड़ेगा थर्ड टाइम। मतलब एक बार इंस्कैन हुआ है वेयरहाउस में, फैक्ट्री से माल, वेयरहाउस से माल, मतलब कस्टमर वेयरहाउस से मटेरियल हमारा वेयरहाउस में आया है, हमारा वेयरहाउस में फिर वो इंस्कैन करके रिसीविंग हुआ है। हमारा वेयरहाउस में रिसीविंग होने के बाद साथ साथ कस्टमर का पास भी मैसेज चला जाएगा। ठीक है, और मेल चला जाएगा जो मटेरियल्स हमारा कलकत्ता हब में आ गया। तो कलकत्ता हब में जब आउटस्कैन होगा, आउटस्कैन का एक बैगिंग सिस्टम रहेगा। ये गाड़ी में गाड़ी नंबर सो एंड सो, ड्राइवर नंबर सो एंड सो, गाड़ी का एक मास्टर रहेगा जिसके अंदर में मेरा सारे गाड़ी उसका अंदर में इनबिल्ड रहेगा। ठीक है ना? तो गाड़ी मास्टर रहेगा, गाड़ी का मतलब व्हीकल मास्टर रहेगा। तो कौन गाड़ी जा रहा है, उसका गाड़ी में कौन सा मटेरियल जा रहा है, पूरा डिटेल्स होके आउटस्कैन होके वो गाड़ी लोड हो जाएगा। ठीक है ना? तो अभी जब भी गाड़ी लोड हो गया है उसको एक हम लोग सील बना देंगे, सील कर देंगे। सील बना दिया। अभी दिल्ली का गाड़ी है तो दिल्ली का जो मैनेजर है, वेयरहाउस मैनेजर है, उनका पास इंफॉर्मेशन चला जाएगा क्या कलकत्ता से ये मटेरियल आ रहा है इस गाड़ी नंबर में। ठीक है, साथ साथ जनरेट ईओए बिल ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। मतलब वो गाड़ी नंबर दे करके ईओए बिल जनरेट हो जाएगा।
जो गाड़ी दिल्ली जा रहा है। तो जब भी ये गाड़ी दिल्ली के लिए छोड़ दिया, दिल्ली का पास भी इंफॉर्मेशन चला आएगा कि कलकत्ता से ये गाड़ी नंबर से मटेरियल इस डॉकेट का मटेरियल आ रहा है। समझ गया? अभी सेम प्रोसेस वो वहाँ पे वो बैग को इन स्कैन करेगा, मतलब जो बैग आया है, बैगिंग मतलब सिंगल बैगिंग नहीं है, मतलब 50 का जो एक बाल्क बैग होता है उसका वर्चुअल बैग होगा, ठीक है? बैग मतलब बैग में नहीं होगा कुरियर का, वहाँ पे वर्चुअल लॉट वाइज होगा। तो वो भी वो वहाँ पे स्कैन करेगा, तो वहाँ पे कोई डैमेज और शॉर्टेज कुछ भी रहेगा वो वहाँ पे रिमार्क्स देगा। रिमार्क्स देने के बाद हमारा जो कस्टमर है उनका पास रियल टाइम इंफॉर्मेशन चला जाएगा, मटेरियल रीच्ड एट दिल्ली हब, ओके? ऑटोमेटिक मैसेज सिस्टम रहेगा, चला जाएगा। फिर उधर से फिर वो क्या स्कैन करने के बाद वो आउट स्कैन करेगा, आउट स्कैन करके मटेरियल को डिस्पैच करेगा, चंडीगढ़ का चंडीगढ़, गुड़गांव का गुड़गांव में, फरीदाबाद का फरीदाबाद में वो डिस्पैच करेगा और वो आउट स्कैन हो जाएगा, ठीक है? आउट स्कैन करके सेपरेट गाड़ी में यूएवी जनरेट करके चेंज करके फिर वो डिलीवरी में चला गया। जब डिलीवरी में चला गया, मेरा एक मोबाइल ऐप्स रहेगा, मोबाइल ऐप्स में मेरा ड्राइवर का पास और डिलीवरी मैन का पास रहेगा, वो मोबाइल ऐप में वो डिलीवरी अपलोड करेगा एंड पीओडी जो प्रूफ ऑफ डिलीवरी उसको भी वो फोटो खींच के उसका अंदर में अपलोड करेगा। दिस इज द ऑपरेशन सिस्टम आई वांट। ओके सर, प्राइमा फेसी मैंने जो बोला है, यस तो अभी उसके बाद सेकंड पार्ट में बाद में आएंगे। अब बताओ ये चीज आपका पास है क्या? Okay, so what you're looking, one thing I need to understand when you're talking about labeling, that means you're talking about the barcoding, right? Yes, barcoding is very much required. Okay, so you're talking about the warehouse module also. Yeah. Does it include the inventory management? Yeah, definitely. Because I am going to construct a 40,000 square feet warehouse in Calcutta, National Highway 6. So I have to maintain the warehouse management because I will rent out. Yeah. I understand, sir. Okay. आजकल का दिन में सॉफ्टवेयर बिना तो काम नहीं चलेगा ना। सॉफ्टवेयर ऐसा होना चाहिए कि मैं यहाँ पे बैठ के सब कुछ देख सकता है। Now I understood your full requirement end-to-end solutions. Yeah. Even if you go to the second or third stage, I know what you're looking for. Yeah. Because I got your preliminary one. Yeah. So basically, I'm also a supply chain guy. So I was asking you those simple points where you're looking for. So Kaushal ji, now let me come to this Gopinath ji. Kaushal ji's the package what we are showing the demo right now is going to give you the full solution end to end on your inland transportation part, including your management of your operation related to inland transportation. तो इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन का आपका ये जो डेमो अभी दिखाएंगे रिगार्डिंग द वेयरहाउस मॉड्यूल एंड द barcoding and all, that's going to be a separate module which has to be integrated. Yes. Okay, we have that, but we are to develop that it will require the integration, so that we will come back to you in the later stage. So Kaushal ji, you can start with your full version of your end-to-end related to the road transport first. From pickup to warehouse to different distribution, okay, that you have all the solution in your platform. So you can explain Mr. Gopinath accordingly. आप थोड़ा समझाइए सबको। जी मैं थोड़ा सा ये एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि जो अपन ने जो डिस्कशन जो किया था ना, हमारे पास अभी जो एप्लीकेशन है वो बेसिकली FTL फुल लोड वालों के लिए है। दूसरा जो है वो जो रिटेल बुकिंग वाला करते हैं, जो सर गोपीनाथ सर ने जो बात करी है, गोपीनाथ जी ने, वो स्पोक एंड हब मॉडल पे बात करी है एक्चुअली। तो स्पोक एंड हब बेसिकली जस्ट लाइक वी कैन से कुरियर सर्विस। तो स्पोक एंड हब के लिए कंप्लीट सॉल्यूशन हमारे पास नहीं है। हमारे पास है रिटेल बुकिंग का, जिसमें ट्रांसशिपमेंट भी हो जाती है। रिटेल बुकिंग में क्या होता है कि रिटेल बुकिंग में हमने जैसे सर ने बताया कि कंसाइनमेंट नोट बना, कंसाइनमेंट नोट बनने के बाद हमारे जो सिस्टम में मैं बता रहा हूँ, रिटेल बुकिंग में क्या होता है कि कंसाइनमेंट नोट बना, जिसको LR भी बोलते हैं, बिल्टी भी बोलते हैं, कोई GR भी बोलता है, अलग अलग तरीके के, एक ही चीज़ के अलग अलग नाम है। तो ये हो गया एक कंसाइनमेंट नोट बना। कंसाइनमेंट नोट बनने के बाद क्या होता है कि एक मैनिफेस्ट जनरेट करता है आदमी। जैसे दिल्ली में 50 पार्टियों का माल बुक हुआ,
50 कंसाइनमेंट नोट बना और उसका एक मैनिफेस्ट बनेगा, मैनिफेस्ट को लोडिंग चालान भी बोलते हैं। मैनिफेस्ट को ही आप बोल सकते हैं, जो बैगिंग जो मैं बोल रहा हूँ। जी, मतलब बैगिंग इज नथिंग बट ए मैनिफेस्ट। तो इसलिए क्योंकि क्या रहता है, जो ट्रांसपोर्टर है वो बेसिकली हमारे कॉन्सेप्ट को समझ के बता पाएगा कि ये जो फीचर आपने जो उसका टर्म अलग यूज किया है, तो मैंने तो क्या है अपन मैच कर लेंगे उसको। हाँ हाँ, तो कंसाइनमेंट नोट बना, इसके बाद क्या होगा कि कंसाइनमेंट नोट बनने के बाद हम बनाएंगे मैनिफेस्ट। नहीं, कंसाइनमेंट नोट जब भी बन जाएगा उसका हिसाब से स्टिकरिंग भी होना चाहिए। बिल्कुल, अभी अभी मैं बताऊंगा, क्योंकि जो चीज़ हमारे पास नहीं है वो हम कस्टम, एक्चुअली वी आर इन कस्टमाइजेशन। वो आपको कस्टमाइज करना पड़ेगा, समझ गया मैंने। बिल्कुल। तो ऑल्दो आई एम नॉट ए माने सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड, बट काम करते करते जो सीखा है। No, हाँ, नहीं, that's what the thing. That's what the thing is, that what Kaushalji is trying to say, that 80% of your job, Kaushalji will show you the demo right now. Yeah. The 20% which is the missing APIs, that is an API actually. The interlink or the system integration with other platform. Okay, Yeah. like barcoding. Yeah. Barcoding is absolutely the total electronic, system which Pratik will be able to tell me, because he's more into soft guy. Because I worked in SAP and PowerMax, so I know what is barcoding is. Okay, in the warehouse module. Okay, do one thing. He understood. Now let's start to show what we have. तो So that Yes. अब क्या होता है, So, जैसे अपन ने बात की जीसी नोट, अपने सॉरी कंसाइनमेंट नोट हमने बनाया, हमने उसका मैनिफेस्ट बनाया। तो हमारे एप्लीकेशन पे क्या होता है, कंसाइनमेंट नोट बनता है, मैनिफेस्ट बनता है। मैनिफेस्ट बनने के बाद अगर आपको कुछ लॉरी हायर स्लिप बनानी है कि गाड़ी लगा तो गाड़ी का भाड़ा एक वो मैटर है, लॉरी हायर स्लिप आप बनाते हो। वो भी होगा, वो भी चाहिए। हाँ, कौशल जी आप डेमो स्टार्ट कर लीजिए, तो फिर आप स्क्रीन शेयर करके और डेमो चल रहा था। मैं शेयर करता हूँ, लेकिन एक छोटा सा सर को एक्चुअली बता दूं तो क्या है, उनको भी तैयारी रहेगी ना, कि माइंड सेट रहेगा कि हमको क्या क्या मॉड्यूल दिखने वाले हैं। तो ठीक है। कंसाइनमेंट नोट, मैनिफेस्ट, लॉरी हायर स्लिप। अच्छा, इसके बाद क्या होता है, जैसे ही आपने हमारे एप्लीकेशन पे बता रहा हूँ कि जैसे ही आपने मैनिफेस्ट बनाया, तो मैनिफेस्ट बनाते ही हमारा जो डिलीवरी पॉइंट है, हमारे एप्लीकेशन पे क्या होता है, जब मैनिफेस्ट बनता है तो वहाँ डिलीवरी पॉइंट बताना पड़ता है कि जैसे ये मैनिफेस्ट है कहाँ से कहाँ के लिए जा रहा है। मान लीजिए दिल्ली से मुंबई के लिए जा रहा है, तो मुंबई में जो हमारा हब है, जो स्टॉक यार्ड है या गोडाउन है, तो लोडिंग चलान मैनिफेस्ट बनते ही क्या होता है, वो मुंबई वाले को, ऑपरेटर को, जो यूज़र बैठा हुआ है उसको दिख जाता है कि मेरे पास कौन कौन सी गाड़ियाँ, कौन कौन से मैनिफेस्ट आ रहे हैं वहाँ से। तो ऐसे ही दिल्ली वाला बनाएगा, ऐसे ही पुणे वाला बनाएगा, ऐसे ही आपका अहमदाबाद वाला बनाएगा, तो सारी मुंबई वाले को दिख जाएगा कि भैया ये 3 गाड़ियाँ मेरे पास आ रही है, एक मुंबई से, एक दिल्ली से आ रही, एक अहमदाबाद से आ रही, एक पूना से आ रही। एग्जैक्टली। अब डिलीवरी पॉइंट वाला क्या करेगा, जैसे ही गाड़ी पहुंचती है तो वो क्या है, वहां पर अराइवल दिखाएगा। सर मीटिंग आज ही ढूंढो, मीटिंग का सॉफ्टवेयर तुम्हें उठा ले, ये सेकंड देखेगा ना, ये एचडीएफसी पे। कैरी ऑन जी, सॉरी डिलीवरी पॉइंट वाला अपना गाड़ी पहुंचने पे अराइवल दिखाएगा, उसको अनलोड करेगा अपने स्टॉक यार्ड पे, और उसके बाद क्या होगा कि वो जो है अपना उसके बाद फिर वो लोकल डिलीवरी करेगा। मान लीजिए गाड़ी मुंबई पहुंच गई, तो मुंबई पार्टियों का माल वो लोकल ऑटो में लोड करके लोकल डिलीवरी करवाएगा, है ना। तो अहमदाबाद वाली भी गाड़ी पहुंच गई तो अहमदाबाद वाले माल वो अपना वहाँ डिलीवरी करवाएगा। तो इस तरीके से अपना ये जो हमारा जो ये रिटेल बुकिंग वाला एक एप्लीकेशन काम करता है। तो इसका मैं आपको एक डेमो दिखा देता हूँ सर। जैसे मैं आपको कौन सा कस्टमर नेम कुछ बता सकता है, कौन सा कस्टमर आपका यूज कर रहा है? देखिए, अब बेसिकली आपकी सिटी कौन सी है? मेरा तो ऑल इंडिया मेरा सिटी है। जैसे मुंबई में क्या है, दीपक रोड कार्गो है, ये इनका जो है बुकिंग पॉइंट तमिलनाडु में सेलम और ईरोड में, और जो डिलीवरी पॉइंट है वो है मुंबई। मतलब ईरोड और सेलम में बुक होता है और मुंबई में डिलीवरी होता है। ठीक। इसके बाद अपना है दिल्ली में हमारे रिटेल बुकिंग वाले क्लाइंट है जिनका दिल्ली में बुकिंग होता है, और गुजरात में डिलीवरी पॉइंट है, सूरत, भरूच, बड़ौदा, ऐसे अलग अलग इनके डिलीवरी पॉइंट है। और जैसे अपन राजस्थान में बात करें तो हमारे क्लाइंट है जैसलमेर में, बाड़मेर में है ना। और इसके अलावा और भी बहुत सारे क्लाइंट हैं जो रिटेल बुकिंग का यूज़ कर रहे हैं।
तो गुजरात में हिम्मतनगर में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप मतलब आगे बढ़िए। मैं आपको डेमो स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। कौशल जी, आप मास्टर्स से शुरू कीजिएगा, ठीक है, टू मेक इट क्लियर अंडरस्टैंडिंग। बिल्कुल। स्क्रीन आ रही है सर? हाँ, स्क्रीन आ रहा है, थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए। नहीं, स्क्रीन आप थोड़ा विजिबिलिटी ठीक नहीं है। अच्छा, एक मिनट, एक काम करते हैं, वीडियोस वगैरह अपन ऑफ कर देते हैं। हाँ, मैं एक बार और प्रेजेंट करता हूँ फिर से। अभी आ रही है? गूगल का साइड आ रहा है। हाँ ठीक है, ये हमारा डेमो लिंक हो गया, अब आ गया। आया है। बिल्कुल, ये हमारा डेमो लिंक हो गया और हम यहाँ पर एक जो यूज़र आईडी पासवर्ड हमने डेमो बना रखा है वो मैं डाल देता हूँ। ये मैंने डाल लिया। छोड़िए ना, स्विच से छोड़िए क्या। स्क्रीन आ रही है ना सर प्रॉपर? हाँ, अभी प्रॉपर आ रहा है। ठीक है सर। अब देखिए, ये जो फर्म लिस्टिंग हो रही है ये अपने नंबर ऑफ ब्रांचेज है। मान लीजिए जितने भी ब्रांचेज हैं, जितने भी हमारे हब हैं या डिलीवरी पॉइंट है या बुकिंग पॉइंट है, यहाँ आप जैसे क्रिएट करेंगे वो यहाँ से लिस्टिंग हो जाएगी। और लिस्टिंग भी वैसे होगी कि आपने जो ऑथराइजेशन रोल ऑथराइज आपने किया हुआ है कि भैया हमारा ये मुंबई में बैठा हुआ बंदा का ये यूज़र आईडी पासवर्ड है और ये इस कंपनी में काम करेगा और इसमें ये उसको मॉड्यूल की परमिशन दी गई है, तो उसके अकॉर्डिंग उसको फर्म विजिबल होंगे। जैसे 6 फर्म है अपने पास, 6 ब्रांचेज हैं, 6 में से आपने एक अहमदाबाद का यूज़र आपने डिफाइन कर दिया कि अहमदाबाद की ब्रांचेज में केवल वही बंदा काम करेगा, तो वो उसको वही ब्रांच एक्सेस। ठीक है, चलिए ये बेसिक चीज है, ये सबको माफ बोलिए, टाइम वेस्टेज होगा। बेसिक चीज तो होना ही चाहिए। देखिए, ये बेसिक चीज है। अब नेक्स्ट देखिए, चलिए। अब सीधा मैं आता हूँ। देखिए, ये एडमिनिस्ट्रेशन हाँ। वाला पार्ट जो है मास्टर्स का पार्ट है। हाँ हाँ, मास्टर में सबसे पहले चलते हैं, जो आपने बात करी थी कि हमको अपने कस्टमर्स की चलिए इसका आगे बढ़िए। ये तो है, ये भी होना ही चाहिए। ठीक चलिए है। इसका बाद है ना, इसके बाद अपन चलते हैं सर। देखिए, ये मैं मतलब आपको जो चीज देख करके पता चल जाएगा कि आप ये सब ऑलरेडी आपको है। ठीक है। इसमें कुछ एडिशनल अल्टरनेटिव बात का बात है। चलिए नेक्स्ट, चलिए समझ गया ना। समय बचेगा, हाँ, दोनों का समय चलिए बचेगा सर। इसका आगे चलिए। अब ये ले बिल्कुल बिल्कुल, वही इसलिए बोल रहा हूँ। ना कोई बात नहीं। ये हमारा हो गया मास्टर्स क्रिएशन हो गया, जहाँ पर हम लेजर क्रिएट करेंगे। और ये हमारा व्हीकल कस्टमर लेजर ना। हाँ, कस्टमर लेजर यहाँ से होता है। एक मिनट रुकिए। ये लेजर मतलब क्या है? लेजर मतलब कस्टमर लेजर। हाँ, यहाँ पर आप अपने कस्टमर का प्रोफाइल क्रिएट कर सकते ये हैं। लेजर मतलब क्या लेजर है? कस्टमर प्रोफाइल, देखिए, तो नेमिंग है। नेमिंग हमने अपने हिसाब से रखा हुआ है। आप इसको अपना जो बोलेंगे ना वो नेमिंग हो जाती है कि मतलब ये लेजर से क्या आप ये सॉफ्टवेयर से एक मिनट ये सॉफ्टवेयर से मेरा बिलिंग होता है होगा क्या? लेजर क्रिएशन मतलब कस्टमर का बिलिंग आएगा क्या इस सॉफ्टवेयर से? हाँ, आएगा ना सर। प्रोफाइल ठीक है, लेकिन लेजर मतलब क्या ना, कस्टमर का बिलिंग भी आ जाता है ना उसके अंदर में। मैं बोला बिलिंग आ जाएगा लेजर का, उसका जो भी बिल बनाएगा और बिल का अंदर उसके अंदर में आ जाएगा, पूरा यही चीज है ना। हाँ, अभी तो हम उसका प्रोफाइल क्रिएशन देख रहे हैं। हाँ? ये कस्टमर का प्रोफाइल क्रिएशन वाला मॉड्यूल हो गया। अच्छा, हाँ, यहाँ जो है आप अपनी पार्टी, जैसे ये हमने एक पार्टी क्रिएट कर रखी है। जैसे ये देखिए, NSR लॉजिस्टिक, ये आपका हो गया। टाटा टोयो करके एक क्लाइंट हमने क्रिएट कर रखा है ना। जेम केमिकल एक हमने बना रखा है। ये हमारे कस्टमर है जिनकी प्रोफाइल हम यहाँ पर डाल रखे हैं। सारी GST नंबर, उनका एड्रेस, उनकी सिटी, उनका पैन डिक्लेरेशन, आधार, TDS डिक्लेरेशन, GST अपलोड, ये सारा कुछ आप यहाँ से डाल सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं, अपन चलते हैं सीधा व्हीकल मास्टर में, जहाँ आप व्हीकल क्रिएशन करेंगे अपना, जहाँ पर सारे हम अपने पार्टियों से जो व्हीकल हमको रजिस्टर करनी है, वो जो हम लोडिंग मैनिफेस्ट बनाते टाइम व्हीकल को यूज़ करेंगे,
जो आप डिलीवरी देते टाइम जो व्हीकल, जितने भी जगह व्हीकल का जो यूज़ आएगा वो सारे यहाँ से रजिस्टर होंगे। चाहे आपका व्हीकल का डॉक्यूमेंट्स हो, आरसी अपलोड करना है, व्हीकल का फिटनेस है, इंश्योरेंस अपलोड करना है, परमिट अपलोड करना है, पीयूसी अपलोड करना है, सारे डॉक्यूमेंट आप यहाँ से डाल सकते हैं। ये तो व्हीकल का मास्टर हो गया। इसके बाद सीधा अपन चलते हैं, ये व्हीकल का डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन है, जहाँ पे आप अपने गाड़ियों का आरटीओ, अगर अपनी खुद की गाड़ियाँ या बाहर की गाड़ियाँ, जिसका भी अगर पेपर रिमाइंडर मैनेज करना चाहते हैं तो वो हो गया एक पार्टी है। एक मिनट सर। हाँ। So Gopinath ji, you can हेलो। management and your client management in this portal, both. हाँ सर। सर एक कॉल पे है, थोड़ा वेट कीजिए ना। Okay. कौशल जी आप कुछ बात कर रहे हैं क्या? नहीं बताइए, वो बताऊं मैं मीटिंग में, बोले क्या आप, क्या चालू रखूं? हाँ नहीं नहीं नहीं, आप होल्ड कीजिए। होल्ड कीजिए आप। आपका वो स्क्रीन्स साइड बाय साइड आप करते रहिए, जहाँ पे दिखाने का है वो काम कर लीजिए। हाँ तो हाँ, कट डाउन द मीटिंग टाइम इन शॉर्ट। बिल्कुल बिल्कुल, मैं एक उनको ना एक ओवरव्यू दे देता हूँ सारी चीज़ की, तो क्या एटलीस्ट उनको आइडिया लग जाएगा। उनको इतना आप एक स्क्रीन में ज्यादा डिटेल में मत जाइए, फ्लो दिखा दीजिए, उनको समझ में आ जाएगा। बाकी तो फिर पकड़ के देखना पड़ेगा बाद में, कस्टमाइजेशन पॉइंट्स कहाँ कहाँ होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है सर, ओके ओके।
गोपीनाथ जी की कंपनी का क्या नाम है सर? ATC। Can we start? हाँ सर। गोपीनाथ जी, हाँ आप स्टार्ट कीजिए, हम लोग है गोपीनाथ, हम दिख रहे हैं, आप पीछे स्टार्ट। अच्छा ठीक है। ओके देखिए मैं गोपीनाथ ही बोल रहा हूँ, आप थोड़ा कंटिन्यू कीजिए। मेरा बेटी है, सुनील है, मिस्टर चैटर्जी है, मेरा एक कस्टमर का इशू आया है, उसको मेरे को सोल्यूशन करना है। तो बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक है, आप कर लीजिए, मैं फिर ज्वाइन करता हूँ। ओके ओके ठीक। देखिए अपन आगे चलते हैं इस पे अपना। सबसे पहले अपन कंसाइनमेंट नोट की बात कर लेते हैं जो ट्रांजैक्शन पे है। यहाँ से होती जो इस पर रिक्वायरमेंट जो चीज़ें होती कि मोटा मोटा हमारे पास पार्टी का नाम होना चाहिए, कहाँ से कहाँ जा रहा है, गाड़ी नंबर, आइटम क्या जा रहा है, क्या क्वांटिटी जा रही है, कितने रेट पे जा रहा है, वो सब डाल के हम इसको कंसाइनमेंट नोट तैयार कर लेते हैं। उसका प्रिंट आउट इस तरीके से दिखता है, जैसे ये आ रहा है। एक प्रिंट आउट अपन ले लेते हैं। प्रिंट आउट हमारे 4 कॉपी में निकल जाते हैं। ये कंसाइनमेंट नोट बन जाता है। कंसाइनमेंट नोट के जो फॉर्मेट्स हैं वो अपन अपने हिसाब से तैयार कर सकते हैं। जो साइज़ चाहिए, जो कस्टमाइज़ करना है वो अपन कर लेंगे। तो ये 4 कॉपी में हमारा कंसाइनमेंट नोट बन गया, जिसको LR बोलते हैं। ये LR बन गया है ना। LR बनने के बाद क्या होता है कि हम मैनिफेस्ट बनाते हैं। ट्रांजैक्शन पे आइए, ये हो गया मैनिफेस्ट। मतलब 20 पार्टियों का माल हमने बुक किया और वो 20 कंसाइनमेंट नोट को सिलेक्ट करके हमने एक मैनिफेस्ट जनरेट कर लिया, जिसका प्रिंट आउट इस तरीके से आता है जो हम अभी देख रहे थे। जैसे कोई पुराना मैनिफेस्ट ओपन कर लेते हैं अपन।
ये जैसे जिसमें दो कंसाइनमेंट नोट मैंने ऐड किया हुआ है, इस तरीके से दिखता है ये हो गया। ये हमारा मैनिफेस्ट बन गया। ये दो कंसाइनमेंट नोट हमारे आ गए, कंसाइनमेंट नोट की डिटेल्स यहाँ पे आ गई। ये भी अपन कस्टम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सारा एक फॉर्मेट हो गया। इसके बाद होता है कि हम एक हायर स्लिप बनाते हैं, जो मैंने बताया था हायर स्लिप बनती है, जो गाड़ी भाड़े के लिए काम आती है कि लोडिंग चालान के साथ साथ एक हायर स्लिप भी बनती है, जिसका फॉर्मेट अपन इस तरीके से देख सकते हैं। जैसे ये एक बना हुआ है 6 नंबर में या 5 नंबर में, ये देखिए। अच्छा, ये जो हायर स्लिप बनती किसी लोडिंग किसी मैनिफेस्ट को लेकर बनाई जाती है। ज़्यादातर जो रिटेल बुकिंग वाले या स्पोक एंड हब वाले हैं ना, वो अपना क्या करते हैं, किसी मैनिफेस्ट को जो चालान है, गाड़ी लोड हुई है, उसको यूज़ करके फिर वो गाड़ी भाड़ा बनाते हैं, मतलब लॉरी हायर। वो इसका प्रिंट आउट इस तरीके से आता है। इसमें डिटेल आती है कितना भाड़े में बात हुआ, कितना एडवांस दिया, कितना बैलेंस है, कोई अदर खर्चा है क्या। तो ये एक हमारा हायर स्लिप का प्रिंट आउट है, जिसमें ये मैनिफेस्ट नंबर आप अटैच कर सकते हो, कितने लोडिंग चालान को यूज़ करके आपने एक हायर स्लिप बनाई। सिंगल को भी बना सकते हो यूज़ करके, आप सिंगल हायर चालान भी ले सकते हो और मल्टीपल भी अपन ले सकते हैं। इसके बाद हमारा काम होता है डिलीवरी पॉइंट पे। डिलीवरी पॉइंट पे जैसे क्या होता है, गोपीनाथ जी ने बताया था कि भाई माल पहुंचा हमारे पास और उसके बाद हम डिलीवरी देते हैं। तो ये एक्चुअली क्या होगा, ये हमको डिलीवरी पॉइंट पे जैसे चलना पड़ेगा। उसके लिए हम एक अपनी दूसरी यूज़र आईडी से चलते हैं। ये जैसे हेलो हेलो, हाँ हाँ, ये मिस्टर अधिकारी गोपीनाथ जी बोलूं। हाँ मैं संदीप बोल रहा था, चटर्जी बोल रहा था। जी बोल रहे कि ये जैसे आपका डिलीवरी पॉइंट में मान लिया हाब में पहुंचा मटेरियल मेरा, कलकत्ता से मान लीजिए गुवाहाटी पहुंचा या दिल्ली पहुंचा, हाब में जब मटेरियल पहुंचा तो वो मटेरियल जो हिसाब से मैन्युफैक्चर हिसाब से जो मटेरियल उसको चेक करके उसको तो इंस्कैन करना पड़ेगा, उनको एंट्री तो लेना पड़ेगा अंदर में, उसके अंदर सॉफ्टवेयर में। हाँ हाँ, मैं बता रहा हूँ सर, वो क्या वो मैन्युफैक्चर कितना मटेरियल आया, कितना नहीं आया, शॉर्टेज हुआ कि नहीं हुआ, वो सब भी तो रिकॉर्ड उसमें आएगा। आएगा ना सर, आएगा ना, हाँ ठीक, आएगा, दिखा रहा हूँ मैं आपको। वो ऐसे होता है, कौशल जी इनका पॉइंट पूरा एक बार डेमो दिखाइए ना, विद द क्वेरीज व्हाट तो द टीम इज आस्किंग। देखिए मैं आपको अभी गोपीनाथ जी ने बोला शॉर्ट में दिखाओ, इसलिए मैं क्या तुरंत आपको एक नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। आप मिस्टर चटर्जी, चटर्जी, देखिए एक काम करते हैं, मैं आपको ना एक चीज़ दिखाता हूँ। एक अपन 2 LR बनाते हैं, उससे चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी कि कैसे वर्किंग चल रही है। ठीक है, 2 हम कंसाइनमेंट नोट बनाएंगे, उसके बाद एक मैनिफेस्ट बनाएंगे दोनों कंसाइनमेंट नोट को यूज़ करके। उसको हम फिर अपने हब में अराइवल दिखाएंगे और अराइवल दिखाने के बाद उसको फिर डिलीवरी करवाएंगे। जो नॉर्मल पैटर्न है मैं वो आपको दिखा देता हूँ एक बार, है ना। ठीक है। अपन चलते हैं, सबसे पहले एक कंसाइनमेंट नोट बनाते हैं हम अपनी मेन ब्रांच पे। हमारी मेन ब्रांच है ATC, मैंने इसको नागपुर लिख रखा हुआ है। और एक अपन बना लेते हैं अपनी, यहाँ से चलते हैं। अब एक हमारी डिलीवरी पॉइंट जो एक हब है उसको हम कर लेते हैं अपना यहाँ पे, सपोज कीजिए इसको चेंज कर लेते हैं और इसको ATC दिल्ली कर देते हैं। चलिए हाँ देखिएगा सर, है ना, ये अपन ने इसका नाम चेंज कर लिया और 2 अपन ने, एक हब, एक अपना बुकिंग पॉइंट हो गया, एक हमारा डिलीवरी पॉइंट हो गया, ये 2 आ गया। ये नागपुर हो गया, ये दिल्ली हो गया। ठीक है, अब चलते हैं सीधा मेन ब्रांच पे जहाँ पर हम कंसाइनमेंट नोट क्रिएट करेंगे। नागपुर वाले ब्रांच पे आते हैं, ट्रांजेक्शन पे चलते हैं, LR एंट्री। LR एंट्री मतलब हमारा कंसाइनमेंट नोट बन रहा है, ये ऑटो नंबर रहेगा और ये कहाँ से कहाँ जा रहा है माल ये बताना है। तो हमारा ये हो गया नागपुर से दिल्ली जा रहा है। अब अपने वो पार्टी बनानी है तो पार्टी यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हो। मैं प्लस का साइन जैसे क्लिक किया और सर का नाम डाल देता हूँ जो भेजने वाली पार्टी, जैसे चटर्जी जी का नाम मैं डाल देता हूँ
और इनका स्टेट है नागपुर से। ये मैंने बाकी प्रोफाइल आप अपडेट कर सकते हैं बाद में। ये मैंने सेव कर लिया। पाने वाली पार्टी का मान लीजिए मैं डाल देता हूँ, ये मैं अपना नाम डाल देता हूँ सपोज कीजिए। ये हमारा काम आता है बिलिंग के लिए, ये बिलिंग के लिए इफेक्ट आता है, जिससे मैंने आपका नाम डाल देता हूँ कि हमको किसके नाम से बिलिंग करनी है, क्योंकि इसमें अकाउंट्स का भी पार्ट है, इसलिए अपन साथ में बताते चल रहे हैं कि ये बिल टू का मतलब है हमको ये बिल्टी किसके नाम से बिलिंग करनी है। जब टू बी बिल्ड की बिल्टियाँ बनेगी तो हमको किसके नाम से बिलिंग करनी है, कंजाइनर के नाम से करनी है, कंजाइनी के नाम से करनी है, कि कभी कभी थर्ड पार्टी के नाम से होता है। तो मैंने अभी दिखा दिया कंजाइनर के नाम से बिलिंग करनी है। नीचे में आता है ये हमारे पार्टी का इनवॉइस डिटेल है, पार्टी का इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, इनवॉइस वैल्यू और ई वे बिल नंबर। देन ई वे बिल की एक्सपायरी, ई वे बिल की एक्सपायरी के रिमाइंडर्स भी हमारे एप्लीकेशन पे हैं, तो आप जो रिमाइंडर जो डेट डालेंगे उससे आपका डैशबोर्ड पे रिमाइंडर मिलते जाता है। अब इसके बाद हम चलते हैं कि आइटम क्या जा रहा है। सपोज कीजिए आपका कुछ प्लास्टिक आइटम जा रहा है, 50 कार्टून है, इसका वज़न मैं डाल देता हूँ 800 किलो, ये मैंने डाल दिया और इसको कार्टून कर लेते हैं। रेट सेटअप, और एक चीज़ जो बोल रहे थे, जैसे इस बीच में मैं आपको दिखाऊंगा बाद में, पहले एक एंट्री अपन कंप्लीट कर लेते हैं। सेकंड एंट्री में मैं वो चीज़ करके दिखाऊंगा जो अपने गोपीनाथ जी ने बात करी थी कि पार्टी वाइज रेट सेटअप होता है, उसके ऑप्शन भी हैं और उसको थोड़ा सा और आपके हिसाब से अपन उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे रेट अपन अगर आपको कार्टून पे लगाना है तो कार्टून पे लगा सकते हो, आपको वजन पे लगाना है तो वजन पे लगा सकते हो, आपका अगर फिक्स भाड़ा है तो फिक्स भाड़ा लगा सकते हो। हर तरीके के ऑप्शन दिए हुए हैं। जैसे अगर कार्टून पे लगाना है कि भाई 150 रुपये पर कार्टून मैं भाड़ा चार्ज करूँगा, तो ये जैसे अपन ने इसको क्वांटिटी में यूज़ कर लिया तो ये 7,500 बन गया। अगर आप इसको बोलेंगे 800 रुपये किलो की 150 रुपये पर केजी मेरे को वो करना है, तो आप यहाँ से इसको एक्चुअल वेट में ले लीजिए, तो ये आपका भाड़ा बना दिया। और अगर आपको फिक्स भाड़ा रखना है तो आप यहाँ जैसे आपने डाल दिया कि 8,000 मेरा दिल्ली नागपुर से दिल्ली का फिक्स भाड़ा है, तो इसको आप फिक्स सिलेक्ट कीजिए, तो ये आपका फिक्स भाड़ा बन गया। अपन इसको अभी कार्टून में लिख लेते हैं कि 150 रुपये पर कार्टून मैं यूज़ कर लेता हूँ। ये मैंने डाल दिया, 7,500 भाड़ा बना। ये मैंने ऐड आइटम किया। बिल्टी टाइप हमको बताना है, ये टू बी बिल्ड है, टू पे है, क्या है, पेड है, ये सब यहाँ से अपने को बताना है। ये लिस्ट में आ रहा है सारा। टू बी बिल्ड ले लिया अपन ने। प्रिंट फ्रेट, इसका मतलब ये है कि जो भाड़ा हमने 7,500 डाला है ये हमारे कंसाइनमेंट LR में प्रिंट आउट में आना है कि नहीं आना है, दिखाना है कि नहीं दिखाना है। तो ये अपना यस करेंगे तो शो करेगा, नो करेंगे तो नहीं आएगा। उसके बाद अगर आपको बिल्टी में कुछ खर्चे आप लोग जोड़ रहे हैं, रिटेल वाले बुकिंग में होती है चीज़ें कि लेबर चार्जेस जोड़ रहा है, कुछ आपका डोर डिलीवरी है, बिल्टी चार्ज आपको डालना है। जैसे 50 रुपये लोडिंग डाल दिया, 50 रुपये बिल्टी चार्ज हो गया, डोर डिलीवरी कुछ है, तो ये मैंने डाल के टोटल 7,650 का ये बिल्टी बन गई। सेव कर लीजिए और ये सेव होने के बाद ये प्रिंट आ गया। ये हमारा प्रिंट आउट हो गया। ये हमारा LR नंबर हो गया, LR डेट, कहाँ से कहाँ जा रहा है, ये पार्टी की इनवॉइस डिटेल, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, इनवॉइस वैल्यू, ई वे बिल नंबर। इसके बाद ये पार्टी का नाम आ गया, चटर्जी जी आ गए, ये कंजाइनी का नाम आ गया, नीचे हमारे आइटम की डिटेल आ गई, कार्टून आ गया, टोटल। कौशल जी, ये अपना जो LR का पहले जो ई वे बिल होगा ना, वो सिस्टम भी इन लोगों को बता दीजिए दैट यू हैव अ सिस्टम which is interlinked to the authority website for printing e-way bills. बता देता हूँ सबसे। हाँ ठीक है, अभी ये देखते हैं, ये प्रिंट आउट हमारा LR का हो गया। इसमें जो अभी नंदी जी ने बात करी, अगर आप चाहते हैं कि आपका ई वे बिल यहीं से बन के निकले तो हमारे पास ऑप्शन भी है कि आप यहाँ से ई वे बिल अपना जनरेट कर सकते हैं। ई वे बिल जनरेट करने के लिए इस तरीके से ऑप्शन आता है। जैसे मैं क्लाइंट का आपको दिखा देता हूँ, एक मोटा मोटा आपको फीचर दिख जाएगा। ये इस तरीके से आता है, जनरेट ई वे बिल। जैसे ये कोई भी आपने LR कंजाइनमेंट नोट एक आपने बनाया और उसके बाद जैसे आप ये जनरेट ई वे बिल करेंगे तो उस कंजाइनमेंट नोट का आपका ई वे बिल जनरेट हो जाएगा। ये तो हुआ एक पार्ट। दूसरा पार्ट रिटेल बुकिंग में क्या होता है, जब मैनिफेस्ट बनता है तो कंसोलिडेट ई वे बिल बनता है कि 10 जो कंजाइनमेंट नोट बने हैं, 10 कंजाइनमेंट नोट को लेके जो एक मैनिफेस्ट बन रहा है उसके अगेंस्ट में एक कंसोलिडेट ई वे बिल बनता है। वो भी अपने पास ऑप्शन दिया हुआ है, वो भी अपन कर सकते हैं। ये हमारा हो गया दोनों पार्ट, ई वे बिल का पार्ट हो गया। इसमें जब LR कंजाइनमेंट नोट बनाते टाइम आप ई वे बिल क्रिएट कर सकते हैं।
अगर आपको एक्सटेंशन करना है तो आप अपने सिस्टम से, हमारे ही सॉफ्टवेयर से उसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं, वो डायरेक्ट आपका गवर्नमेंट पोर्टल में चीज़ें अपडेट हो जाएगी। अच्छा, बारकोड स्टिकर की आप बात कर रहे हैं तो हमारे पास एक ऑप्शन आएगा यहाँ पे, प्रिंट बारकोड करके एक बटन है, कुछ क्लाइंट्स को दिए हुए हैं। तो आप क्या करेंगे, जैसे आपका ये 50 कार्टून है तो सिस्टम क्या करेगा, चूंकि बारकोड के सॉफ्टवेयर में हमने काफ़ी काम किया, हमारे बहुत सारे बारकोड के सॉफ्टवेयर चल रहे हैं अभी, हालांकि हमने बंद कर दिया उस पर काम करना बारकोड पे, लेकिन कॉन्सेप्ट पता है। तो क्या करेगा, जैसे सर बता रहे थे, गोपीनाथ जी बोल रहे थे कि 50 कार्टून है, तो 50 कार्टून का क्या करेगा, स्टिकर 50 प्रिंट करेगा, 1/50, 2/50, 3/50, 4/50, ऐसा करके वो 50 स्टिकर्स निकलेंगे और वो आप स्टिक कर लो उसको। और इसके बाद इस बीच में अपन बात कर रहे थे रेट सेटअप की, वो यहाँ से होता है। देखिए रेट सेटअप मॉड्यूल है। अब जैसे मैं एक पार्टी का नाम लेता हूँ, सपोज कीजिए चटर्जी जी, मैंने इनका नाम डाल दिया और इनका एक प्रोडक्ट है, सपोज एक बिल्टी अपन और बनाएंगे जिसका हम ले लेते हैं, सपोज कीजिए बैटरी, ये हमारा जाएगा नागपुर से दिल्ली, और इसके लिए हम भाड़ा चार्ज कर रहे हैं, सपोज करो 200 रुपये कार्टून पर कार्टून। ये मैंने रेट डाल दिया और इसको मैंने सेव कर लिया, ये सेव हो गया। अपन ये रिटेल बुकिंग के लिए है ना, ये अपन, क्योंकि अभी जो गोपीनाथ जी ने बात करी थी वो सब उन्होंने रिटेल बुकिंग और ट्रांसशिपमेंट के बारे में ही बात करी, एफटीएल के बारे में उन्होंने कुछ बोला ही नहीं अभी। ठीक। नहीं, सही बात। अभी तक एफटीएल के बारे में बोला नहीं, एफटीएल भी होता है हमारा। हाँ, लेकिन अभी सर ने जो कि चालू वहीं से किया, उन्होंने रिटेल बुकिंग से, स्पोक से चालू किया था, ठीक है। इसलिए मैं this system is both for FTL and for LTL, means less content, less truckload. So less truckload is obviously also coming as a courier also, if you are using as a courier. ना देखिए, कुरियर का ना कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और इसका स्कोप इलाबोरेट होता है, और इलाबोरेट हो जाता है उसमें। हाँ, और इलाबोरेट हो जाता है, यस। हाँ, क्योंकि कस्टमर पॉइंट डिलीवरी पे आ जाता है ना, उसमें और कुछ थोड़ा और मॉड्यूल आपको चाहिए, मॉड्यूल आते हैं उसमें, क्या है, हब बढ़ जाते हैं, दूसरे टाइप के मॉड्यूल जुड़ जाते हैं। तो ये एक्चुअली कुरियर को, हमारा एप्लीकेशन स्पेसिफिक कुरियर को सपोर्ट नहीं कर पाएगा, कस्टम करना पड़ेंगे अपने को। अब जैसे But that will be customers, but your requirement is courier or FTL and LTL sub? No, our service is basically bulk load, FTL and LTL. We are not into courier mode. Yes. Courier is a different concept. We are not into e-commerce and courier service. We work basically for the customers, for distribution of their product, maintain the supply chain management, and Correct. we work for the FTL module for different companies for consignment, from shipment of consignment from one city to another city, one location to another location. Right, sir. And LTL or PTL mode, we do suppose one party is giving 10 box today, okay, for the consignment from Calcutta to Delhi, or 5 box from Calcutta to Ranchi, or 4 box from Calcutta to Jamshedpur, something like that. Okay, that will be delivered to the through our respective hub. That will be delivered to the customer. Here customer means basically the retailers or distributors, something like that. It's not that key. So got it. Direct end user or end customer like e-commerce. Right, sir. Kaushal ji, it is more of a warehousing and distribution. It's not a courier service, huh? बिल्कुल, देखिए हमारा भी डॉक्यूमेंटेशन जो बोल रहे थे अभी, डॉक्यूमेंटेशन मोड इज मोर और लेस सेम, मे भी उसमें कुछ डिटेलिंग रहेगा, कुछ डिटेलिंग निकल जाएगा वहां से। बिल्कुल, अब वही Right, as per your requirement. मान लीजिए उसमें आप चालान में 50 पॉइंट दे रहे हैं, उसमें हमको 50 पॉइंट नहीं लगता, हमको 25 ही लगता है, ठीक है ना? तो हमको 25 पॉइंट चाहिए, ठीक है। एलआर में हमको 25 पॉइंट चाहिए। मान लीजिए 2 पॉइंट जो है वो हम कुछ डेटा है जो हम इनपुट लेते हैं, रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं, लेकिन दूसरा कोई नहीं करता है, तो वो एक डेटा फील्ड आपको उसमें बढ़ाना पड़ेगा मास्टर क्रिएशन के टाइम। बिल्कुल, राइट। So this package fully suits your requirement because I can understand. एक बार मैं दिखा देता हूँ सर, एक बार ना आपको, जैसे अपन ने एक कंज्यूमर नोड बनाया और एक मैंने आपके लिए रेट सेटअप कराई है, बैटरी अपन ने डाला, जो सर ने बात करी थी कि रेट सेटअप भी होता है एग्रीमेंट के हिसाब से पार्टियों से, तो ये अपन ने एक रेट सेटअप कर लिया, 200 रुपीज़ पर कार्टून मैंने एक रेट सेटअप किया। अब फिर से एक एलआर बनाएंगे, एक एलआर हमने ये बनाया इसके पहले 109, जिसमें हमारा ये था प्लास्टिक आइटम था। अब एक एलआर बनाएंगे हम 110,
ये भी सेम जगह जा रहा है, नागपुर से दिल्ली भेज देते हैं। यहाँ पर पार्टी सेम कर लेते हैं, पाने वाले को चेंज कर देते हैं, अपन कंजानी को बदल देते हैं और बिलिंग हम कंजानर के नाम से ही कर देते हैं। ये हो गया। और उसके बाद ये पार्टी की इनवॉइस डिटेल हो गया, इनवॉइस वैल्यू, ये वे बिल नंबर आ गया हमारा और एक्सपायरी डेट आ गई। ये मैं डाल के ऐड कर, अब देखो एड्रेस रायपुर आ गया, ऊपर दिल्ली नीचे रायपुर। अच्छा ना ये कोई बात, इससे कोई, ये एक्चुअली डमी है। एक्चुअली ये पार्टी मैंने ऐसे ही सेव करी थी, वो ले लिया था, तो कोई इसका टेंशन नहीं है। तो अपन क्या करते हैं, अब नीचे चलते हैं। बैटरी हमने जो रेट सेटअप करी था, बैटरी का रेट सेटअप किया था, ये मैं लेता हूँ। अब देखिए, जैसे ही हमने बैटरी सिलेक्ट करा, ये दिखा दिया 200 रुपये जो हमने पर कार्टून डाला था, ये आ गया। तो इससे क्या होता है, ये रेट सेटअप उस समय भी काम आता है कि यूज़र बैठा हुआ है, ओनर है नहीं, ओनर ने सारा रेट अपने एप्लीकेशन में डाल दिया कि भाई इस पार्टियों का दिल्ली से अहमदाबाद का ये रेट, इस पार्टियों का दिल्ली से पूना का ये रेट, इस पार्टियों का दिल्ली से सूरत का ये रेट। तो उससे क्या है, सिस्टम खुद ही इसको उठा लेगा, चेंज करने की ज़रूरत नहीं, यूज़र को कुछ बताना नहीं है अपने को। अब जैसे मैंने इसमें डाल दिया 55 कार्टून मैंने डाल दिया, वजन मैंने 850 kg मैंने डाल दिया, और इसको अपन कार्टून ले लेते हैं। ये कार्टून मैंने लिया और ये हमारा क्वांटिटी में कन्वर्ट होके ऐड आइटम। क्वांटिटी रेट जो दिखा रहा है आपको, रेट टाइप जो दिखा रहा है ना, क्वांटिटी, जी, उसमें क्या क्या ऑप्शन, जो भी ऑप्शन है हम लोग उसी हिसाब से चेंज कर सकते हैं। आप कर सकते हैं। जैसे ये मैंने अभी क्वांटिटी, मतलब मैंने जो क्वांटिटी का मतलब ये है कि ये जो रेट कैलकुलेट करेगा, ये हमारा नंबर ऑफ पीस, क्वांटिटी इनटू रेट, क्वांटिटी इनटू रेट करेगा। अगर आप उसको वेट पे लेना चाहते हैं तो ये एक्चुअल वेट, इसमें देखिए वेट भी दो तरीके से, जब FTL पे अपन जाते हैं फुल लोड सिस्टम पे, तो क्या होता है, कई बारी पार्टी का इनवॉइस का वजन और कांटे का वजन, ये कुछ फर्क आ जाता है, वॉल्यूमेट्रिक हो जाता है वेट। हाँ, तो क्या होता है, हमको ये दो वजन डालने पड़ते हैं कि भैया पार्टी का इनवॉइस का एक्चुअल वजन ये था, और चार्ज वेट मतलब हमने जो कांटा करवाया, पेमेंट करवाया, उस समय 25-50-100 किलो कम आ गया या ज़्यादा आ गया। तो ये आप वजन से भी करवा सकते हैं आप, और फिक्स भाड़ा भी है। FTL वाले ज़्यादातर फिक्स भाड़े पे काम करते हैं कि भैया दिल्ली से, नागपुर से दिल्ली जा रहा है, 10,000 रुपये मेरा फिक्स भाड़ा। अब ये हो गया, ये हमारा एक LR बन गया, सेव कर दिया अपन ने। हमारे पास 2 कंसाइनमेंट नोट बन गए। अब इसका मैनिफेस्ट बनाते हैं अपन। ये हमारे 2 अब मैनिफेस्ट पे चलते हैं। ट्रांजैक्शन पे आइए, पार्ट लोड, ये लोडिंग चालान, मैनिफेस्ट को हमने लोडिंग चालान लिख रखा है ना। अब हमारा था बिल्टी नंबर जैसे फाइंड करना है। आवाज आ रही है सर प्रॉपर्ली? हाँ आ रही है जी। अब जैसे एक बिल्टी नंबर है हमारा, यहाँ से फाइंड करते हैं। पहले हम गाड़ी लोड करते हैं कि हमारी गाड़ी जा रही है, तो MH, ये गाड़ी अपन ले लिए, ये हमारा जा रहा है नागपुर से मुंबई, नागपुर से दिल्ली, और ये अब बताएंगे ये किस ब्रांच के लिए जा रही है। तो ये हमने डाल दिया ATC दिल्ली, ATC दिल्ली मैंने डाल दिया। और ये सारे फील्ड मैंडेटरी नहीं, आप डालना चाहो, छोड़ना चाहो, ये तो मैं हटा लेंगे। अब अपन चलते हैं, बिल्टी फाइंड करते हैं जो ऐड करनी, 1800061009, ये आ गया। ये दो कंसाइनमेंट नोट मैंने सिलेक्ट किया और नीचे आके मैंने इसको सेव कर दिया। ये हमारा मैनिफेस्ट सेव हो गया और यहाँ से प्रिंट आ जाएगा इसका, ये प्रिंट। ये हमारा हो गया मैनिफेस्ट नंबर, मैनिफेस्ट डेट, कहाँ से कहाँ जा रहा है, जो हमने गाड़ी, ये जो गाड़ी डाली उसके ओनर का क्या नाम है, ड्राइवर का नाम, ये हमारी ये LR नंबर, LR की क्वांटिटी, पाने वाली कंजानी का नाम, डेस्टिनेशन, वेट एंड फ्रेट। ये हमारा एक मैनिफेस्ट बन गया। मैनिफेस्ट को अपन कस्टमाइज कर सकते हैं। अब इसके बाद बनता है हमारा लॉरी हायर 225581। जैसे ये बनता है एक हमारा लॉरी हायर, यहाँ से पार्ट रोड में आइए, ये लॉरी हायर बनता है। ये जैसे अपन डाल दिया
अब उसके बाद हम ऐड करते हैं हमारा जो मैनिफेस्ट हमने बनाया था, डबल 25581। ये एक आ गया हमारा, ये टोटल आ गया कि टोटल एक्चुअल वेट इतना था, गारंटीड इतना था, और अब इस पे अपने को भाड़ा डालना है। जैसे मेरा ये सपोज कीजिए ये 5,000 मेरा भाड़ा है, कुछ इसमें आपको खर्चा जोड़ना है, 100 रुपये जोड़ लिया अपन ने, कुछ एडवांस दे दिया क्या अपन ने 2,000, तो 3100 उनको देना बचा। यहाँ से आप इसको सेव करके और ये अपना यहाँ से प्रिंट निकल जाएगा सर। अच्छा वाला सेव नहीं हुआ, ये इस तरीके से प्रिंट आता है इसका। ये हमारा एक लॉरी हायर हो जाता है। इसके बाद हम चलेंगे, अब गाड़ी मान लीजिए हमारी पहुंच गई कहाँ, हमने मैनिफेस्ट बना दिया और गाड़ी हमने उसको भेज दिया अपने डिलीवरी पॉइंट हब के लिए। हब बोलने से हमारा जो दिल्ली वाला पॉइंट है उसके लिए हम एक यूज़र क्रिएट कर लेते हैं। जैसे मैं एक यूज़र पहले बना लेता हूँ। ये हमारा जो मैनिफेस्ट है ना, कौन सा नंबर है, ये अपन ने जो बनाया अभी दिल्ली से नागपुर से दिल्ली के लिए 225581, ये हमारा मैनिफेस्ट बना था नागपुर से दिल्ली के लिए। और ATC दिल्ली हमने बता दिया कि ये हमारा डिलीवरी पॉइंट जो है, जो हब है हमारा दिल्ली है, ATC दिल्ली। अब हम आते हैं यहाँ पर एक यूज़र क्रिएट कर लेते हैं, यूज़र क्रिएशन पे ATC दिल्ली के नाम से। ATC दिल्ली, সুনীল সুনীল বলুন, শুনছি। বলছি যে তোমার কিছু ইনপুট দেওয়ার থাকলে বলে দিও, জিজ্ঞেস করার থাকলে জিজ্ঞেস করে নিও। তো পুরোটা শেষ হয়ে গেলে প্রসেস ফ্লো শেষকালে কিন্তু তখন মানে জাম্বল হয়ে যাবে, সবটা একসঙ্গে জিজ্ঞেস করতে হবে না দাদা, আপনার এখানে যদি কোনো মিস আউটও যদি করে যান না, এভরিথিং ক্যান বি মানে চেঞ্জড অ্যাজ পার ইওর রিকোয়ারমেন্ট। না না, এই সিস্টেমটা ইজ ভেরি সেটা আমি বুঝতে পেরেছি। মডিউল অ্যাডাপ্টেবল মডিউল, মডিউল অ্যাডাপ্টেশন ইজ ভেরি থাকে। যদি কিছু কোয়ারিজ থাকে ইন দ্য প্রসেস জেনে নিলে তখন राइट। अब मैं ये ATC दिल्ली में लॉगिन कर रहा हूँ। सपोज कीजिए ATC दिल्ली वाला बंदा हमारा बैठा हुआ है सिस्टम में। ये मैंने ATC दिल्ली की लॉगिन आईडी डाल दी। एक मिनट, इनका परमिशन क्यों नहीं हुआ, लॉग आउट होना जाए। Save, successful, sign up। ये देखिए सर ATC दिल्ली आ गई, लॉगिन करते हैं। अब हम चलेंगे अराइवल में, ट्रांजैक्शन पे आइए, पार्ट लोड में हमारे पास एक अनलोडिंग का ऑप्शन है। जैसे हम अनलोडिंग में आएंगे, ये देखिए हमने एक मैनिफेस्ट नंबर बनाया था 225581 नागपुर से दिल्ली के लिए। अब इस पर आप क्लिक करेंगे तो इसके अंदर जितने कंजाइनमेंट नोट है LR है वो दिखा देंगे। ये जैसे ये आ गया एक अपना 109 और 1010 नागपुर से दिल्ली, ये दो पार्टी। अब जैसे आप सर ने बोल रहे थे कि माल कम आया ज़्यादा आया, तो आप यहाँ से डाल सकते हैं कि 50 क्वांटिटी में से 45 उतरा, उसका वजन इतना था। रिमार्क्स आपका था कि शॉर्टेज, डैमेज जो लिखना है आप लिख लो, तो ये भी आप इन्वेंट्री में चले जाएगा। इसमें से 55 में से 52 बॉक्सेस आए, इसमें वजन कम आया, ये आप इसमें डाल सकते हैं कि डैमेज आपने डाल दिया। इस तरीके से इसको डाल के, और किसने अनलोड किया, जैसे मैं डाल देता हूँ कि भाई ये कौशल शर्मा ने अनलोड किया, किस हब में जा रहा है, गोडाउन नंबर 501 में जा रहा है, 51 में जा रहा है, ये मैंने डाल दिया और इसको मैंने कर दिया अनलोड। ये मैंने जैसे ही अनलोड दबाऊंगा, ये हमारा ये गोडाउन स्टॉक में आ गया। अभी रिपोर्ट दिखाता हूँ मैं आपको, PTL रिपोर्ट में आइए, स्टॉक रजिस्टर पे आइए, स्टॉक फ्रॉम अनलोडिंग में
ये हमारे स्टॉक में आ गया, देखिए ये 2 बिल्टी हमारे स्टॉक में आ गई। ये 51 नंबर हमारा जो है ये हमारा वो हो गया गोडाउन नंबर, कब कब हुआ और अनलोडेड बाय, किसने अनलोड किया ये गाड़ी, ये हमारा ये स्टॉक रिपोर्ट हो गया सर। अब इसके बाद क्या होता है कि इसके बाद सीधा सीधा होती है कि पार्टी को हम माल दे देते हैं। हमारे एप्लीकेशन में ये है कि हमारे पास स्टॉक में माल आया और उसके बाद हम इसको लोकल डिलीवरी दिखाएंगे। लोकल डिलीवरी क्या होती है, कैश में सर एक मिनट, यहाँ पर बट आपका जो शॉर्ट डिलीवरी था वो तो शो नहीं हुआ। हाँ सर, वो शॉर्ट डिलीवरी नहीं आया, वो अपन डालेंगे इसमें। हाँ वो तो शो नहीं हुआ ना। आएगा सर, तो मेरा 55 हाँ वो आना चाहिए स्टॉक रजिस्टर में कि भाई इतना अराइवल आया, उसमें रिमार्क्स जो लिखे थे हमने कि भैया स्टॉक डैमेज था या आपका शॉर्टेज था, वो सारी चीज़ आनी चाहिए इसमें। इसके बाद मैं आपको एक दिखाता हूँ कि हम इसमें इसको डिलीवरी कैसे देना है अपने को। जो लोकल डिलीवरी पार्टी को देते हैं हम यहाँ से देते हैं, ये कैश मेमो गेट पास बनता है हमारा यहाँ से। जैसे अब ये सपोज कीजिए कि हमारा माल नागपुर से दिल्ली पहुँच गया, हमारे स्टॉक में आ गया, अब उसको दिल्ली में मेरे को पार्टियों को डिलीवरी देनी है, तो एक हमारा यहाँ से कैश मेमो गेट पास जनरेट होता है सर। जैसे अब किस गाड़ी में लोड हो रहा है, मान लीजिए एक छोटी सी ऑटो हमने लोड कराई और उसका गाड़ी नंबर है, ये मैंने डाल दिया DL 2144। अब यहाँ से एक एक बिल्टी को हम फाइंड करके जितनी गाड़ी में जा रही है वो बिल्टी को हम ऐड करते हैं, तो उसका एक गेट पास बनेगा। जैसे 1800060109 एक बिल्टी ये हुई हमारी, ये हमने ऐड किया, ये डिटेल आ गई सारी, ये क्रेडिट में जाएगी ताकि बिल बन जाए। डिलीवरी चार्जेस को जोड़ना है तो ये हमने जोड़ लिया, लेबर चार्जेस हमने जोड़ लिया, ये इसके बाद इसको हमने ऐड कर दिया। फिर एक बिल्टी आएगी 1800060110, ये फाइंड कीजिए। इसके बाद ये क्रेडिट में इसका भी 100 रुपीज़, लेबर चार्जेस 50 रुपीज़, और इसको हमने ऐड कर दिया। ये 2 बिल्टी हमने ऐड कर दी और इसको आप सेव कर लीजिए यहाँ से, ये सेव हो गया। और ये प्रिंट आपकी 10 बिल्टी भी आपने ऐड करी है तो 10 बिल्टी को मिला के एक गेट पास बनाएगा और 10 अलग मनी रिसिप्ट मतलब कैश मेमो बना देगा। ये आपका गेट पास बन गया 2 बिल्टी को मिला के, और ये आपका कैश मेमो यहाँ से अलग अलग आपका कैश मेमो निकलता है। ये आपका ये कैश मेमो हो गया सर। अब मैं इसकी स्टॉक रिपोर्ट दिखाता हूँ। हमारी जैसे ही कैश मेमो बनता है सिस्टम उसको डिलीवरी दिखा देता है, तो स्टॉक में से ये दोनों माल डिलीवरी हो जाएंगे, मतलब स्टॉक में से हट जाएंगे। स्टॉक रिपोर्ट में आ जाइए, स्टॉक फ्रॉम अनलोडिंग, ये देखिए ये हमारी जो दोनों बिल्टी है वो यहाँ से स्टॉक में আগরতলাতে কিছু পিওডিও এসছে, তো সেগুলো আমি রেডি করে জিপ ফাইল করে পাঠিয়ে দেব। अच्छा छोला खाबे, छोला भाजा खाबे, खाओ। अब देखिए एक बिल्टी स्टेटस का अपने पास ऑप्शन है। अगर हमको बिल्टी ट्रैक करनी है कि भाई मेरे पास ये बिल्टी का क्या स्टेटस है, अब जैसे बिल्टी स्टेटस में आते हैं अपन, यहाँ मैं डाल दिया बिल्टी नंबर आपका, ये नागपुर में बनी थी 1800060109, ये मैंने डाल दिया। जैसे मैंने शो किया ये हमारे पास डेटा आ गया, ये हमारी LR की डिटेल आ गई, LR नंबर, LR डेट, कहाँ से कहाँ जा रहा है, पार्टी कौन थे, क्या आइटम था, क्या भाड़ा था, प्लास्टिक आइटम। और नीचे आते हैं हमारे पास, ये देखिए ये मैनिफेस्ट कब बना, कहाँ से कहाँ तक के लिए बना, कौन सी गाड़ी में बना, ये आ गया। इसके बाद अराइवल कब हुआ, कौन अराइवल करवाया, कौन से गोडाउन में अराइवल हुआ, और हमारी अनलोडेड क्वांटिटी क्या थी, ये हमको अनलोडेड वेट क्या था ये मिल गया। अच्छा गेट पास हमारा बन गया क्या, तो स्टेटस दिखा रहा है कंप्लीटेड, कैश मेमो नंबर इसमें बना है, और इसके बाद डिलीवरी स्टेटस पेंडिंग आ रहा है। उसके लिए क्या होगा कि हमको POD अपलोड करनी पड़ेगी। POD अपलोड कहाँ से होगा, जैसे डिलीवरी अभी पेंडिंग दिखा रहा है, एक्नॉलेजमेंट नंबर पेंडिंग है, POD फाइल ब्लैंक आ रही है, तो इसके लिए आपको यहाँ से POD डालनी पड़ेगी। POD का ऑप्शन आपका है इधर में,
ट्रांजेक्शन पे आइए, पीओडी कंफर्मेशन, यहाँ हम डालते हैं बिल्टी नंबर 1800060109, ये से टैब मारा, ये हमारी बिल्टी आ गई, इसको टिक कीजिए। कुछ एक्नॉलेजमेंट डालना है आपको, डाल सकते हैं, खाली छोड़ना छोड़ सकते हैं, फिल कर दीजिए। उसके बाद ये चूज़ फाइल, ये हम पीओडी फाइल एक ले लेते हैं, जैसे एक पीओडी फाइल मैं ले लेता हूँ, कोई भी एक फ़ाइल उठा लेते हैं अपन, जैसे मैं ये एक रिसीव वाउचर, कोई भी एक पीओडी उठा लीजिए ना। हाँ, रिसिप्ट जहाँ सिग्नेचर है वो उठा लीजिए ना, वो वहाँ पे वो इधर पे अटैच कर दीजिए। हाँ, ये रिसीव वाउचर करके एक फ़ाइल मैंने ले लिया है इसमें। हाँ ठीक है, इसको मैं सेव कर देता हूँ, ये सेव हो गया। अब मैं आपको बिल्टी का स्टेटस चेक करवाता हूँ, यहाँ से चलिए बिल्टी स्टेटस में आते हैं और उसको दिखाइए, उनको दिखाइए दैट वो कैसे दिखने में होता है पीओडी। हाँ मैं दिखा रहा हूँ, मींस हाउ इट लुक्स इन द सिस्टम, वही दिखा रहा हूँ सर। शो कीजिए, ये देखिए नीचे आइए, अब ये देखिए डिलीवरी स्टेटस हमारा उस समय पेंडिंग आ रहा था, अभी कंप्लीटेड, मतलब पीओडी आ गई है। ये कुछ रिमार्क हमने डाला था वो आ गया, और नीचे पीओडी फाइल जो हमने अपलोड करी थी ये आ गया, आपका यहाँ से ओपन हो जाएगा। सो टीम ये अपना क्या है ना, व्हेन यू आर आपका जब कंसाइनमेंट पहुंच गया, सो रिमार्क्स इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑन द पीओडी, कि मटेरियल डैमेज रिसीव्ड हुआ क्या, कुछ ब्रोकन कुछ रिसीव्ड हुआ, तो ये सब रिमार्क्स में आएगा। बिल्कुल, which will actually further lead to the insurance claims. These are things are required, you know, your insurance claims and value क्या है वो बाद में ये सब, this follows your supply chain till you know the total file is completed. Am I correct? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब देखिए, अब हमारा क्या हुआ, ये जैसे ही माल डिलीवरी हो गया, अब पार्टी क्या बोलेगी, अगर दो तरीके की पार्टी होती, कैश वाली पार्टी होती है और बिलिंग वाली पार्टी होती है। कैश वाली पार्टी आपको पेमेंट तुरंत कर देगी कैश मेमो के बेस पे, और बिलिंग वाली पार्टी होगी जो बिल के अगेंस्ट में पेमेंट करेगी आपको। ऑपरेशनल पार्ट यही रहता है कि भाई कंसाइनमेंट नोट बना, स्टिकर हमने प्रिंट आउट निकाल लिया, ई वे बिल हमने जनरेट कर लिया, उसके बाद कंसाइनमेंट नोट मतलब मैनिफेस्ट हमने बना लिया, मैनिफेस्ट में कंसोलिडेटेड ई वे बिल हमने बना लिया, मैनिफेस्ट बन गया, उसके बाद लॉरी हायर हमने बना लिया, यहाँ तक हो गया आपका बुकिंग पॉइंट का काम ख़त्म। इसके बाद आता है आपका डिलीवरी पॉइंट का, जो आपका हब है जहाँ पर माल आपका जा रहा है, वहाँ का काम आता है। तो वहाँ का यूज़र क्या करेगा, उसको पहले अनलोडिंग अराइवल दिखाएगा, जो हमने अनलोडिंग से करा था, जहाँ पर स्टॉक हमने देखा था वो हो गया अराइवल वाला। अराइवल के बाद हमने किया लोकल डिलीवरी, मतलब पार्टी को डायरेक्ट हमने माल पहुँचा दिया कि भैया स्टॉक से हमारे गोडाउन से निकला, और कैश मेमो मनी रिसिप्ट बना के हमने पार्टी को डिलीवरी कर दी। इसके बाद क्या होगा नेक्स्ट, अब पार्टी का पेमेंट का पार्ट चालू होता है। तो वो सबसे पहले कौशल जी, इसके बाद एक प्रोसेस जो बताने का है इज दैट इसके बाद स्कैनिंग होता है जब गुड्स अराइव होता है। जैसे आपका स्कैन हुआ था वहां पे लेबलिंग का टाइम पे जी, एग्जिट एंड एंट्री, ठीक है, 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट क्लोज, मींस आपका जो वेयरहाउस मॉड्यूल के लिए जो सर ने जो बताया का इनका स्कैनिंग होगा, तो टोटल ट्रैकिंग सिस्टम जो बोलता है द ट्रैक एंड ट्रेस, इसी स्कैनिंग के ऊपर होता है। नहीं तो जैसे सपोज कीजिए अपन अपने अभी इसी एंट्री को लेके चलते हैं कि मान लीजिए नागपुर से 2 बिल्टी हमारी दिल्ली पहुंची। हाँ जी, दिल्ली में हमने उसको अराइवल दिखा दिया, हमारे गोडाउन स्टॉक पे दोनों आ गया। वो सब ठीक है, मैं ये ऑपरेशन इज नोन, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, व्हाट इज द एडिशनल फीचर्स व्हाट इवन दिस कंपनी इज लुकिंग फॉर। इसका एडिशनल फीचर है क्या, वो जो आपका ट्रैक एंड ट्रेस जो बारकोड मॉड्यूल पे होगा वो होगा क्या, वहां का जब पिकअप होगा वो एक स्कैनिंग होगा, मींस पिक बिन पैक ये होता है, ठीक है ना। तो उनका एक स्कैनिंग हो जाएगा कि ये फ्रेट जा रहा है, इसके साथ एलआर जा रहा है, ई वे बिल जा रहा है, ये सब स्कैन हो गया ना वही मैं पूछना चाह रहा हूँ कि वो जो मॉड्यूल है वो कहाँ पे आएगा, वही मैं पूछ रहा हूँ। जैसे शुरू से वो शुरू से होगा, शुरू किया गया। क्योंकि शुरू से होगा इसलिए क्यों, मान लीजिए जब एक डॉक्यूमेंट जनरेट हुआ, सीएन जनरेट हुआ, वो सीएन में जो ट्रैकिंग रहेगा, वो जो बारकोड रहेगा, वही ये ट्रैकिंग होगा कि कस्टमर पॉइंट से ये मटेरियल पिकअप हुआ, मेरा वेयर हाउस में आया, वहाँ पे इनस्कैन हुआ, फिर वहाँ से आउटस्कैन होकर निकल गया मटेरियल। तो वहाँ से जब मटेरियल आउटस्कैन होकर निकल गया डेस्टिनेशन की ओर, दिल्ली हाफ की ओर, फिर दिल्ली हाफ में जब मटेरियल पहुंचेगा, आप जो दिखा है इसमें जो मैनिफेस्ट आया, 2 मैनिफेस्ट के अंदर में इलाज जो था, एक इलाज के अंदर में मान लीजिए 10 मटेरियल 10 पैकेज है, ठीक है ना, एक पार्टी का,
हाँ। 10 पैकेज जो है 10 पैकेज वहाँ पे जब स्कैन करेंगे तो वो 10 पैकेज आपको इंस्कैन होकर उसका स्टॉक का अंडर में आ जाएगा, क्योंकि बाद में मान लीजिए उसमें 10 पार्टी का माल आया, 6 पार्टी का डिलीवरी हो गया, 2 पार्टी का मटेरियल रह गया। हाँ। जब तक ये हो जाएगा तब तक ये मैनुअल एंट्री करने में क्या होगा कि वो जो डॉकेट नंबर रहता है ना, वो 12 नंबर रहता है, 11 डिजिट नंबर रहता है मान लीजिए, ठीक है ना, उसको मैनुअल 100 डॉकेट हो जाएगा तो मैनुअल एंट्री करना भी तब मैंने इज वेरी डिफिकल्ट। स्कैनिंग क्या होगा, मैं थोड़ा एलैबोरेट कर रहा हूँ, लेट मी जस्ट एलैबोरेट सर, ठीक है ना। इनका कहना क्या है, आप पहले बात समझो। आई अंडरस्टूड, सी दे आर मेकिंग अ वेयर हाउस मॉड्यूल। कौशल जी, कल उधर पे क्या हो रहा है, क्या जब पिकअप पॉइंट से ये आपका बारकोडिंग हो गया, ठीक है ना, और ये पहुंच गया आपका डेस्टिनेशन में या जहां जहां आपका हब्स है, ठीक है, वो पहुंचने के बाद वो फाइनल स्कैन होगा कि ये पहुंच गया। The barcoding is not only giving you a track and trace, it is also giving you a record of where ये पैकेज प्लेस हुआ है वेयर हाउस में, कहाँ पे ये, सपोज आप ये पैकेज दे रहे हो 5 दिन के बाद या 10 दिन के बाद, ठीक है, क्योंकि आपका 2 पे बेसिस है, आपका जो क्लाइंट है एंड क्लाइंट, उसने पे नहीं किया तो ऐसे तो कार्गो नहीं देगा। तो जब वो पे करेगा तब थोड़ी धड़ी उसने 10 दिन बाद पेमेंट दिया, तो आपका वो लोकेशन क्रिएट हो जाएगा कि ये पैकेज कहाँ पे है वेयर हाउस में, इनका वेयर हाउस में, तो वो लोकेशन से वो लेके वो ट्रैक हो जाएगा, लेके वो जब वो पेमेंट आएगा वो पहुंच भी जाएगा। देखो अपने केस में तो नंदी जी ऐसा है ना कि भाई हमारे पास तो हब एक ही हो रहा है कि भाई एक माल एक पिकअप पॉइंट से गया और डेस्टिनेशन पे पहुंचा, मान लीजिए नागपुर से निकला और दिल्ली पे पहुंचा, दिल्ली पे सारा चीज स्कैन हुआ बारकोड से फटाफट और अराइवल हो गया, अराइवल हो गया, हमारे स्टॉक पे आ गया, फिर उसका डिलीवरी दे रहे हैं हम पार्टी को, तो फिर से स्कैनिंग हुई, सीधा कैश में वो गेट पास बन के पार्टी के पास चले गया, वो सब रिकॉर्ड हो जाएगा मॉड्यूल पे। उसका बारकोड का सेपरेट मॉड्यूल होता है जो इंटीग्रेशन होता है, ठीक है ना, उसमें वो पूरा रिकॉर्ड होता है, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3, स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 3। वो समझ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, वो समझ गया मैं आपका। लेकिन आप ये देखिए कि लेवल ठीक चल रहा है अपना, क्योंकि हमारे पास 3 लेवल के ही स्टेजेस हैं। सबसे पहला पिकअप पॉइंट, राइट, दूसरा हमारा डेस्टिनेशन जो हब है जहाँ पे हमारा स्टॉक यार्ड है वो, राइट, और तीसरा वहां से माल निकल के पार्टी के पास जा रहा है, करेक्ट। मान लीजिए इसमें सब हब हो जाएगा, ठीक है ना, सब हब मतलब मान लीजिए दिल्ली से निकाल के वहां से 30 किलोमीटर दूर एक हब में गया जहाँ से डिलीवरी हुआ नहीं, लेकिन वो लोकल हब में मटेरियल रह गया, वो मेरा हब भी, अपना हब भी हो सकता है, कुछ मेरा एक वेंडर डिलीवरी पार्टनर और डिलीवरी वेंडर का हब भी हो सकता है जहाँ पर मटेरियल है लेकिन दिल्ली से निकल गया डिलीवरी के लिए, 30 किलोमीटर जाने के बाद वहाँ से डिलीवरी करना था लेकिन वहाँ पे डिलीवरी हुआ नहीं, वहाँ पे एक लोकल वेंडर के पास वो रह गया, उसके लिए क्या करना है, डिलीवरी होगा। नहीं, उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कौशल जी, जस्ट लेट, बिकॉज आई हैव डन इट, हम लोग करता है ना तो मैं जानता हूँ इसका। वेयरएवर कार्गो गेट स्टक, वेयरएवर ये कार्गो कहीं पर रुक जाता है या कहीं पर प्लेस हो जाता है, कहीं पर वो सारा रिकॉर्ड इस ट्रैक एंड ट्रेस में रहेगा, until it is finally delivered with the POD sign to the end user। नहीं वो नहीं बोल रहा हूँ सर, वो समझ गया, मैं वो मैटर समझ गया नंदी जी। मैं ये बोल रहा हूँ सर ने, चटर्जी जी ने बोला हमारा पिकअप पॉइंट से माल उठा, मैनिफेस्ट बना, डेस्टिनेशन हब में गया, अराइवल हुआ, लेकिन अब डायरेक्ट पार्टी को डिलीवरी नहीं हो रही है, अराइवल होने के बाद एक स्टॉक यार्ड से निकल के उनके दूसरे हब में गया। हाँ तो ठीक है ना, कोई 4th स्टेज आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप 5-6 स्टेज भी कर सकते हो। नहीं तो हमारे पास क्या मॉड्यूल होने चाहिए ना, हमारे पास देखिए हब में ट्रांसफर का, शिफ्टिंग टू हब का एक मॉड्यूल हमारे पास होगा, तब तो हम दिखाएंगे, नहीं तो वो हब की जो सब That's what I'm saying, मैं अभी दिखाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मतलब ये हो सकता है, पॉसिबिलिटीज इज देयर, सब हो सकता है, इट इज एज पर द कस्टमर रिक्वायरमेंट, इट कैन बी रिफ्रेम्ड, बिल्कुल, that's what I'm saying, सब कुछ हो सकता है, बिल्कुल, nothing impossible sir, because you can ask for 10 stages also। मान लीजिए यहाँ से सिलीगुड़ी सामान जाता है, सिलीगुड़ी हब जाता है, तो वहाँ से सिलीगुड़ी से फिर मटेरियल कुचबिहार जाता है, कुचबिहार जाने के बाद मान लीजिए वहाँ का छोटा कोई वेंडर है या साफ वेंडर है जिसके पास मटेरियल गया, लेकिन वो डिलीवरी उस दिन हुआ नहीं, किसी भी कारण से वो 1 दिन बाद होगा कि 2 दिन बाद होगा,
तो वो ट्रेस भी हमको रहना पड़ेगा कि वो मटेरियल भी कुछ भी में है, सिलीगुड़ी में नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, वो अपन ऐड करेंगे सर, कोई बात नहीं, समझ गया मैं, करेक्ट करेक्ट, ठीक है। समझ गया। वो क्या है हमारा एक सर मैं बीच में इंटरफेयर कर रहा हूँ सर, ये तो टोटली आपका सरफेस मोड हो गया, बट मेरा और जो तो मेरा मॉड्यूल है एयर का है और रेल का है, जिसमें होता क्या है कि स्टेट टू स्टेट रेलवे में ट्रांसफर होता है, उसके बाद लोकल गोडाउन टू गोडाउन शिफ्ट होता है, उसके बाद डिलीवरी अच्छा जी सर, आई थिंक Mr. Gopinath ji had said that to specifically not that one, that is already there with you, I think the air and the rail. We were asked to show this part, only the inland part. सर गोपीनाथ सर ने पहले ही आपको बताया कि हमारा 3 मॉड्यूल पे वर्क होता है। एक्चुअली हम लोग कोरियर का काम नहीं करते और डायरेक्ट ट्रक लोड का भी काम नहीं करते। तो आप लोग का जैसे एक कस्टमर के पास से 100 कंसाइनमेंट पिकअप हुआ और वो आपका ये 100 पॉइंट पे डिलीवरी होगा। वो डिलीवरी मेरा खुद का गोडाउन भी कर सकता है और दिया हुआ है, मॉडल पे काम होता है। I got you, sir, but this module is not related to air and rail. That is a different one, different module. So it will be integrated in a different module. That also we have. This is particularly your onshore transportation and warehousing related hub. And the other part, what you're talking about, the air import or air export, whatever you are doing, and for the rail movement, that's a different package. So all this are हाँ, all मैं मिस्टर अधिकारी बोल रहा हूँ, ये पैकेज भी आपका है क्या? नहीं सर, इसमें नहीं है, इसमें आपका No, this is Gopinath ji, this is only for ये आपका सिर्फ सरफेस मूवमेंट, सरफेस के लिए, अच्छा, इसका अंदर में आपको बिलिंग है क्या? हाँ बिलिंग है ना सर, मैं दिखा रहा हूँ आपको, देखिए। बैंक रिकॉन्सिलिएशन है क्या? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, है बैंक रिकॉन्सिलिएशन है क्या? बिल्कुल है, बैंक बिलिंग है, बैंक बुक है, कैश बुक है, पार्टी का लेजर, टोटल आउटस्टैंडिंग सारा कुछ दिया हुआ है। मतलब हम यहाँ पे बिल कर सकते हैं, बिल करने से ऑटोमेटिकली लेजर में चला जाएगा। हाँ ये है ना सर, ये अभी तुरंत इसमें कर सकते हैं। अच्छा, आप एक बार कंसाइनमेंट नोट क्रिएशन का एक बार थोड़ा दिखाइए तो, ये है वो चीज जो शुरू में आपने दिखाया नहीं, वो चीज ये है कंसाइनमेंट नोट क्रिएशन। हाँ वही है सर, हम लोग अभी बनाए बारकोड कंसाइनमेंट नोट क्रिएशन दिखाइए। ये जैसे अपना कंसाइनमेंट नोट है, यहाँ पे ट्रांजेक्शन पे आइए, LR एंट्री, और ये हमने अभी एक बनाया, 2 कंसाइनमेंट, अभी जब आप बिजी थे तो हमने ये 2 कंसाइनमेंट नोट अभी जनरेट किया हमने। ये ओके, इसका प्रिंट आउट देखते हैं अपन, ये इस तरीके से आता है। अच्छा, इसके फॉर्मेट क्या है, जो छोटे ये A5 पे है प्रिंट आउट, आप बोलेंगे तो साइज चेंज हो जाएगी। हाँ समझ गया, वो तो हमारा हिसाब से हो जाएगा। बिल्कुल, तो ये हमारा कंसाइनमेंट नोट है जिसमें डिटेल पूरी आ जाती है। ओके 4 कॉपी में। इसका प्रिंटर क्या यूज होता है? ये लेजर प्रिंटर। अच्छा, हैंडी पे कैरी कर सकते हैं वो लोग? वो भी आप कर सकते हैं, उसका फॉर्मेट अपन चेंज करेंगे। कुछ लोग हमारे वो हैंडी आप बोल रहे हैं उस पर निकालते हैं, तो उसका फिर वो क्या थर्मल प्रिंटर का प्रिंट आउट अलग होता है वो। ठीक है, मैं समझ गया। आप एक काम कीजिए, इसका साथ आप एक काम करो, रेल, एयर एंड इसको तो 3 API सिस्टम से हम कोई दूसरी कंपनी से अटैच भी कर सकता है ना, जैसे मेरा कुछ फॉरेन कंपनी से है। हाँ। उनको क्या है, API सिस्टम से उनका सिस्टम को इसका साथ जोड़ना चाहिए। जुड़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सर जुड़ जाएगा, because Pratik is more into the APIs. Myself will you walk around shaking hands by walking on the road. अच्छा, But we need the APIs by that is Pratik. That is तो एक काम कीजिए, हमको ना एक ऑफर भेज दीजिए आप लोग, एक इसका ऑफर अलॉन्ग विथ आपका रेल एयर का जो आप बोल रहे हैं, वो दोनों करके एक ऑफर मेरे को मेल में डाल दीजिए। मेरा मेल आईडी प्रतीक के पास होगा शायद। प्रतीक इज लीडिंग दिस। प्रतीक जी, यस सर, আপনি মেল করে দিন আমাকে, একটা অফার মেল করে দিন। ঠিক আছে, আমি আপনার নিয়ে নেব, হোয়াটসঅ্যাপে নিয়ে নেব আপনার ইমেল আইডিটা। নিয়ে নিন একটা, আর কত তাড়াতাড়ি দিতে পারবেন সেগুলো দিয়ে দেবেন। ঠিক আছে, ঠিক আছে দাদা। ওকে, অ্যাকাউন্টস পার্টটা কি দেখেছিস নিশা? হ্যাভ ইউ সি দ্য অ্যাকাউন্টস পার্ট? আই থিংক নিশা লেফট। আই এম জাস্ট টেলিং হার, জাস্ট আ মোমেন্ট। এটা অ্যাকাউন্টস পার্টটা একবার দেখান না, অ্যাকাউন্টস পার্টটা একটু দেখে দাঁড়ান।
অ্যাকাউন্টস পার্টটা একটু দেখান তো, বিলিংটা অ্যাকাউন্টসটা। নিচে ফোন করবে, নিচে। হ্যালো হ্যালো হ্যাঁ দেখেন। হ্যাঁ হ্যাঁ বলুন বলুন, নমস্কার নমস্কার, কি নাম আপনার? হ্যাঁ Lisa has already joined. You just show the accounts part. Just demonstrate the accounts part, please. यस सर। আপনাকে পাঠিয়ে দেবো। ओके মেল আইডিটা আমাকে সেন্ড করে দিন। আপনার সার্ভিস লাগবে কোথায় কোথায়, মানে স্টাইল পুরোই নেই লাগবে কি? পুরোই দিয়ে দেবো তো, না শুধু বেঙ্গল লাগবে আপনার? হ্যাঁ হ্যাঁ हेलो ओके 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 कर लीजिए। निशा जी है ना? नहीं चलिए, नहीं है। हाँ है मैं हूँ, कंटिन्यू कीजिए, मैं हूँ। शी इज देयर एंड कौशल जी यू स्टार्ट। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सबसे पहले चलते हैं अकाउंट्स का जो पार्ट हमारा चालू होता है वो आता है बिलिंग सेक्शन से, है ना। तो हम आते हैं अपने बिलिंग वाले मॉड्यूल पे। ये हमारा एक बिलिंग का मॉड्यूल है। हाँ ये আপনাদের ব্র্যান্ডের নাম কি? ट्रांसपोर्ट लैंड। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, नोट করে নি। স্বপন দা को भी थोड़ा दिखाओ, सुनील दा, संदीप दा, स्वपन दा को भी दिखाओ बिलिंग पार्ट। हाँ 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 ओके ओके हाँ 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 ठीक 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 ओके ओके कंटिन्यू कीजिए। बिल्कुल। देखिए ये पार्ट हमारा बिलिंग वाला मॉड्यूल है। अब इसमें হ্যাঁ আপনার সাথে একটু কথা ছিল, এক মিনিট বসুন। এনি প্রবলেম? না না প্রবলেম না। हेलो हाँ कंटिन्यू कीजिए, मैं देख रही हूँ। अच्छा ठीक है। संदीप दा आप थोड़ा स्वपन दा को दिखाओ, स्वपन दा के पास। देखिए ये देखिए हम बिलिंग वाले मॉड्यूल पे हैं और जैसे मैंने पार्टी का नाम सिलेक्ट किया चटर्जी जी के नाम से, ये कैसे आया ये अपन आपको ध्यान होगा एलआर बनाते टाइम हमने बताया था कि ये जो हाँ 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 मैंने देखा मैं थी कभी, है ना। आप बिलिंग पे दिखाइए। हाँ हाँ ये अपन ने डाला था बिल्ड टू। हाँ ठीक है, मैंने देखा था। अब अपन चलते हैं बिलिंग में, फिर से आ जाते हैं यहाँ अपने को बिलिंग मॉड्यूल पे अपन आ गए। तो हम जैसे ही यहाँ पार्टी का नाम सिलेक्ट करेंगे, जैसे ये 3 बिल्टियाँ अभी एलआर शो कर रहा है, लेकिन हम यहाँ पर चटर्जी के नाम से हमको बिल करना है। मैं उनका नाम सिलेक्ट करता हूँ तो उनके नाम से जितनी पेंडिंग कंसाइनमेंट नोट होगी, जितनी बिल्टियाँ पेंडिंग है वो यहाँ शो कर रही है। मान लीजिए मैं दोनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ बिल बनाने के लिए। अगर आप एक सिलेक्ट करेंगे तो नेक्स्ट टाइम आपको यहाँ पर एक बिल्टी आएगी। अगर आप दोनों सिलेक्ट कर लेंगे तो नेक्स्ट टाइम यहाँ बिल बनाने की नहीं आएगी। जब अपन नया बनाएंगे तो फिर शो करेगी। इसको सिलेक्ट करके आपको नीचे आइए, टोटल बिल अमाउंट कितना हो गया 18,650 और यहाँ से आप इसको सेव कीजिए और इसका प्रिंट आउट ऐसे आ जाता है। ये हमारा प्रिंट आउट आएगा, ये आगे अगर सोचिए मैंने एंट्री करने के टाइम रेट और वेट और पैकेज कुछ भी गलत डाल दिया तो उस बिलिंग करने का टाइम मैंने देखा कि गलत है, मैं वो रेक्टिफाई कर सकती हूँ क्या? हाँ आप रेट को रेक्टिफाई कर सकते हैं। जो अगर क्वांटिटी में कोई प्रॉब्लम है तो आपको एलआर में जाके रेक्टिफाई करना पड़ेगा।
मतलब एलआर में जाकर रेक्टिफाई कर सकते हो ना, एडिट का ऑप्शन तो हर चीज में ही रहेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल, आप वहां पर एडिट कर सकते हो ना। और एक चीज मुझे पूछना था, मैंने कभी पूछा नहीं है। जब भी आपने बोला कि डिलीवरी का टाइम पीओडी अपडेट करना चाहिए, ठीक है। मैंने अगर मतलब आपका पीओडी अपडेशन, अगर उसका जगह पीओडी का जगह दूसरा कुछ फोटो डाल दिया तभी भी अपडेट हो जाएगा क्या? हाँ, उसमें दो तरीके की फाइल अब जाती है, पीडीएफ चली जाएगी, आपकी वर्ड चली जाएगी, आपका इमेज फाइल चली जाएगी। अच्छा, बिल्कुल। उसको हम कस्टमाइज कर सकते हैं क्या, कि गलत पीओडी हम जब भी अपलोड कर रहे हैं कि शो करेगा कि गलत हो रहा है नंबर के साथ? नहीं ना मैडम, ये देखिए कैसे आइडेंटिफाई होगा पीओडी के अंदर। मतलब क्या है, मतलब आप एक सीएन डॉकेट नंबर पकड़िए 25052, ठीक है। मैंने उसका अंदर पूरा एंट्री किया एलर, उसके बाद मैंने वो डॉकेट की डिलीवरी करने के बाद हम अपडेट कर रहे हैं, ठीक है। तो जब भी मैंने पीओडी अपडेट कर रही हूँ, आप इमेज पीडीएफ और एक बोला ना कि फाइल अपलोड कर सकते हैं, तो उसका जगह 25052 का डॉकेट अपलोड नहीं करके हम दूसरा डॉकेट डाल दे तभी भी डिलीवर दिखा देंगे ना। तो वो चीज पे मतलब हम कुछ कर सकते हैं क्या कस्टमाइज? नहीं मैडम, वो इसलिए कस्टमाइज नहीं हो सकता क्योंकि जो आप बात कर रहे हो ना वो टैक्स रिकग्निशन सिस्टम वाला मैटर अलग हो गया, क्योंकि फाइल के अंदर क्या नंबर लिखा हुआ है ये सिस्टम कैसे जानेगा? आप तो नंबर डाल रहे हो कि मैं डॉकेट नंबर ये फिल कर रही हूँ, लेकिन आप अपलोड, हाँ मान लीजिए आपने 2500 नंबर का एक डॉकेट का आपने पीओडी डालने के लिए वहां पर आपने, जैसे सपोज कीजिए, एक काम करता हूँ, ये बिल अपना बन गया है, इसको बंद करता हूँ। 18650 का बिल बना, देखिए पहले ये चटर्जी के नाम से, तो देख लो। चटर्जी जी के नाम से हमने बिल नंबर बनाया 154801, ठीक है ना। टोटल अमाउंट है 18,650। अब इसको क्लोज कर देते हैं और आपको मैं पहले लेजर दिखा देता हूँ, फिर लास्ट में जो पीओडी वाला कॉन्सेप्ट है वो डिस्कस करेंगे अपन। हाँ ठीक है, चलिए हाँ दिखाइए। रिपोर्ट्स में चलते हैं, पार्टी की सबसे पहले लेजर समरी चेक करते हैं हम चल के। डेट आप डाल लीजिए, पार्टी का नाम हम ले लेते हैं चटर्जी जी, और यहाँ शो कीजिए। ये देखिए ये आ गया हमारा। अब आउटस्टैंडिंग देखने के 3 तरीके हैं, एक तो लेजर समरी ये जो आई है, इसके बाद एक होता है कि बिल बाय बिल हमारे पास एक रिपोर्ट आती है कि हर बिल बाय बिल हमारे पास कितना पेमेंट आया और कितना बैलेंस है, वो एक रिपोर्ट यहाँ से मिलेगी आउटस्टैंडिंग पार्टी वाइज। यहाँ भी आप डेट डालेंगे, 3 तरीके हैं हमारे पास देखने के। जैसे ये मैं डेट ले लेता हूँ पुरानी 1 जनवरी से, सॉरी इसको अपन क्लोज कर देते हैं, ऑल में जाते हैं और अब शो करते हैं। ये हमारी रिपोर्ट आ गई, ये देखिए ये हमारे सारे पार्टियों हैं जिनका बिल हमने बनाया था और उनके पेंडिंग्स दिखा रहे हैं और रिसिप्ट भी दिखा रहे हैं कितना है। सपोज कीजिए जैसे एक ये पार्टी, अपन जैसे चटर्जी जी का मैटर देखते हैं, ये आ गया, इनका बिल नंबर ये था, बिल अमाउंट ये था, टोटल हमारा बिल अमाउंट इतना था और रिसिप्ट हमने अभी कुछ भी नहीं किया, तो हमारा नेट बैलेंस ये आ गया। अब मान लीजिए कुछ पेमेंट हमारे पास आ जाएगा, वो यहाँ जमा हो जाएगा, फिर ये बैलेंस निकाल देगा। ये हमारी दूसरी रिपोर्ट हुई। पहला हमारा लेजर समरी था, दूसरा रिपोर्ट हमारा हो गया ये पार्टी आउटस्टैंडिंग पार्टी वाइज, और एक रिपोर्ट और है पार्टी के आउटस्टैंडिंग देखने का, कंप्लीट आउटस्टैंडिंग, मतलब ये पार्टी का क्लोजिंग बैलेंस एज ऑन डेट निकालता है। जैसे ये आ गया, जितनी आपकी पार्टियाँ हैं सबका आउटस्टैंडिंग ये क्लोजिंग निकाल देगा। आखिरी चलते हैं, देखिए चटर्जी जी का कितना आ रहा है 18,650। अब सपोज कीजिए चटर्जी जी ने हमको दे दिया 15,000 पेमेंट, वो जमा कहाँ से होगा? एक्सक्यूज मी, आई जस्ट बार्ज्ड इन। कौशल जी आप आगे बढ़िए, बिकॉज मेरे को थोड़ा दूसरा मीटिंग में जाने का, ये अकाउंट्स रिलेटेड है ना। जी जी, सो यू कैन कैरी ऑन। प्रतीक यू स्टे प्लीज। ओके, अब हम चलते हैं, पेमेंट जमा कर रहे हैं रिसिप्ट पेमेंट में। रिसिप्ट वाउचर हम इसके लिए यूज़ करेंगे। इंटर टाइप बैंक में पैसा आ रहा है तो बैंक लिया जाएगा, मॉड्यूल टाइप बिलिंग रहेगा। पार्टी का नाम डाल देते हैं हम, चटर्जी जी से पैसा आया, किस हेड में ले रहे हैं, बिलिंग अमाउंट के हेड में आ रहा है। अब ये आ गया हमारा बिल नंबर, किस बिल नंबर के अगेंस्ट में जमा कर रहे हैं, तो ये 18,650 बिल अमाउंट है और इसमें से 15,000 हमको मिल गया। और TDS हम डाल देते हैं ऊपर में चल के, यहाँ से किस बैंक में आया, ये बैंक का नाम आ गया और TDS हमारा 1% कट गया, टोटल हमको मिला 14,850। इसको सेव कीजिए, ये सेव हो गया। यहाँ से आपका रिसिप्ट वाउचर भी प्रिंट आ जाता है।
ये रिसीव वाउचर हो गया अपना, पार्टी का नाम ये सब करके TDS काट के टोटल नेट इतना जमा हो गया। ये बिल नंबर, बिल अमाउंट, बिल नंबर और ये हमारा रिसीव अमाउंट। अब हम लेजर देखते हैं एक बार। ये देखिए, ये हमारा नेट जमा हुआ, ये TDS में जमा हुआ, टोटल 15,000 जमा हाँ हुआ ठीक है ना। अब इसका सेम लेजर, समझ। हाँ अब इनका लेजर जैसे आपको दिखाया था मैं, आउटस्टैंडिंग पार्टी वाइज देखना है आपको। तो ये आप यहाँ से डेट ले लीजिए पुरानी और ऑल कर लेते हैं, पेंडिंग ऑल कंप्लीटेड सब देखने का ऑप्शन है। ये हो गया, नीचे आइए, ये देखिए ये 15,000 जमा हुआ 1860 में से 36 इतना इतना बैलेंस है ठीक है समझ। है ना। इसका आउटस्टैंडिंग भी है अपने पास। ये बिल कंसाइनमेंट तो दिखाई देगा कौन सा अनबिल्ड है। हाँ दिखाएगा ना सर। अच्छा, अन रिसीव POD माने मतलब POD रिसीव करके सुनील क्या है वो चीज जो हमारा जो सॉफ्टवेयर में है, जो POD कलेक्ट नहीं होता है मतलब वो भी है। हाँ दिखा हाँ। आपको पहले वो रिपोर्ट दिखाऊं जो आपने पूछा था कि पेंडिंग LR यहाँ से मिलता है। जैसे ऐसी कौन से कंसाइनमेंट पेंडिंग है जिनका बिल बनना बचा, ये है LR पेंडिंग फॉर बिलिंग, ये आ रही है। ओ अच्छा अच्छा, इस पे जाइए, डेट डालिए आप, जैसे अपन हेलो 1 तारीख से आज तक का डाल देते हैं कि 1 मार्च से यहाँ पे जाओ शो, इतने हमारे बिल, इतने कंसाइनमेंट नोट है, इनका बिल बनना बचा है, पेंडिंग है अभी। ठीक ठीक। और आपने एक चीज़ पूछी थी, POD रजिस्टर भी है इसमें, ये वाला POD रजिस्टर है आपका। एक क्लाउड बेस में रहेगा ना? ये पूरा क्लाउड बेस ही है सर। क्लाउड जी। अब ये मैंने जैसे कितने POD पेंडिंग है, ये एक मिनट रुकिए, ये दिखा रहा है कि हमारे पास इतने पेंडिंग है, इतने आने बचे हैं, ये सब दिखा रहा है। ट्रैकिंग व्हीकल का जो GPRS वो कुछ है इसके अंदर में? नहीं सर, GPS का अभी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है हमारे में, अभी टाइम है थोड़ा सा इसको इंटीग्रेट होने में। GPS फिलहाल नहीं है इसमें। अच्छा जी। व्हीकल मैनेजमेंट है? नहीं सर, फ्लीट मैनेजमेंट भी नहीं है। फ्लीट मैनेजमेंट केवल RTO पेपर मैनेज होता है इसमें, गाड़ी का ओनली। हाँ नहीं, फ्लीट मैनेजमेंट कुछ बहुत सारे रहता है, कब इंश्योरेंस है, कब ये है, कौन सा गाड़ी का फिटनेस कब है, वो है RTO का रिन्यूअल रिमाइंडर आता है इसमें। RTO गाड़ियों का आपने जैसे रिन्यूअल का डाल दिया ना, सारा फिटनेस है, इंश्योरेंस है, आपका PUC है, वो यहाँ से आता है। देखिए डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन वाला मॉड्यूल है, यहाँ आपने सारी गाड़ियों को आप रजिस्टर कर दीजिए कि भैया ये गाड़ी नंबर, ये डॉकेट नंबर हो गया, ये फिटनेस के लिए आप डाल रहे हो, ये गाड़ी नंबर है, किस कंपनी से रजिस्टर हुआ है, इफेक्टिव डेट हो गया, कब एक्सपायर होने वाला है। तो ईवे बिल तो ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा ना? ईवे बिल बन जाएगा इसमें से, ईवे बिल बन भी जाएगा। आप ईवे बिल एक्सटेंशन भी कर सकते हैं, और आपका कंसोलिडेट ईवे बिल जब मैनिफेस्ट बनता है उस समय वो भी बन जाएगा इसमें। ठीक 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 है। हाँ सर। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? सुनील और निशा और प्रियंका और प्रतिष्ठा। देखिए बेसिकली इसका अंदर में FTL ही है, बाकी हमारा जो जरूरत है सब उनको करना है। बेसिकली उनका जो है FTL को माने ट्रांसपोर्ट बोलता है, हमारा जो है वो पूरा ही करना पड़ेगा। तो ठीक है, आप एक काम कीजिए, अगर माने मतलब इसमें तो पूरा काम हमारा इसके साथ हमारा जो रिक्वायरमेंट है वो आपको मैं बोल देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। जैसे जो POD वाला पार्ट बोला आपको, जो POD वाला पार्ट बोला ना आपने, बोला लास्ट में दिखाते, वो एक बार सिखाइए मुझे। ये देखिए, आप सपोज कीजिए अपना ये मान लीजिए मेरी POD नंबर, ये एक कंसाइनमेंट नोट नंबर है 1212, ठीक है ना। और मैं इसको अपलोड करना चाहता हूँ, 1212 मैंने डाला। अब आपका कहना ये है कि 1212 की जगह 2012 किसी ने डाल दिया फाइल। हाँ। तो वो कोई आप उसको चेक नहीं कर सकते ना, फाइल को अपन चेक नहीं कर सकते कि भाई ये फाइल के अंदर क्या लिखा हुआ है, वो कैसे सिस्टम पहचानेगा?
अच्छा ठीक है, वो चेक नहीं कर सकते, आप ऑप्शन डाल सकते हो कि पीओडी अपलोड मतलब फोटो अपलोड करने से पहले नंबर पुट करें, डाल देंगे। क्योंकि अगर जो फोटो अपलोड कर रहे हैं पहले नंबर पुट करे तो उसको पता चलेगा, रॉन्ग करेंगे तो फोटो के साथ करेक्शन होगा, क्योंकि बहुत लोग ऐसा करते हैं कि दूसरा फोटो डाल देता है और मटेरियल डिलीवर दिखा देते हैं, उसका करेक्शन का ऑप्शन भी रहना चाहिए ना। ड्राइवर लोग जो बहुत है ना हमारा, क्या करते हैं फोटो अपलोड कर दिया, कुछ भी फोटो अपलोड कर देते हैं, उसके बाद आपको दिखाएगा कि मटेरियल डिलीवर्ड, तो इसलिए मैं बोल रही थी ऐसा ऑप्शन होना मतलब वहाँ पर एक ऑप्शन दे सकते हैं कि जैसे आप बिल्टी नंबर सेलेक्ट कर रहे हैं, उसके बाद बिल्टी नंबर सेलेक्ट करके जब स्कैन करने जाएगा वहाँ पे पहले आपको दिखाएगा मैनुअल, अपना पीओडी नंबर डालिए या पीओडी को स्कैन करिए बार कोड, एग्जैक्टली, तब तक वहाँ पर नंबर आ जाएगा, दोनों को वेरीफाई कर लेगा, नंबर और वो मैनुअल ये नंबर तो हम डाल रहे हैं, जिस बिल्टी का जिस एलआर का हमको पीओडी अपलोड करना है वो एलआर नंबर तो हम यहाँ डाल ही रहे हैं, ये आ गया। वहाँ पर एक स्कैन का ऑप्शन देना पड़ेगा बार कोड का, जैसे पीओडी पे मेरा सारा बार कोड है, ताकि वो बार कोड पे स्कैन ऑटो वहाँ पे नंबर आ जाएगा, दोनों नंबर को वेरीफाई कर लेगा मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा। क्योंकि क्या है जो सॉफ्टवेयर ने आप मेरा फोटो डाल दिया, सेल्फी डाल दिया, तो आपको क्या हो गया, डिलीवर्ड दिखा रहा है मटेरियल, हमारा टीम बाद में देखेगा पूरा दिन में 500-600 मटेरियल पीओडी अपलोड हो रहा है, तो किसको पता कैसे चलेगा, एडमिन को ढूंढना पड़ेगा ना। मेरी बात सुनिए, आप ये कैसे वेरीफाई करेंगे, भले आप कितनी भी चीज डाल दो, आप बारकोड नंबर डाल दो, कुछ भी डाल दो, जैसे आपने सपोज कीजिए कि आपको एक पीओडी फाइल अपलोड करनी है, तो पीओडी फाइल अपलोड कैसे होगी, आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, चूज करके ही आप करोगे भाई, सिलेक्ट करके ही आप करोगे ना। एक मिनट सुनिए ना, हमारा जो पहले था वो कैसे था, जो लाइव पिक्चर का ऑप्शन भी तो होना चाहिए ना। हाँ, लाइव पिक्चर का ऑप्शन होना चाहिए, फाइल चूज करेगा लाइव पिक्चर, वो मोबाइल पीओडी, वही मैं बता रहा हूँ, मोबाइल ऐप्स के साथ लिंक अप करना पड़ेगा, क्योंकि इतना पीओडी स्कैन करके जितना टाइम जाएगा मेरे को लाइव रहेगा, क्योंकि क्या है प्रक्रिया, मेरा एक ड्राइवर मटेरियल डिलीवर कर दिया, ठीक है, तो उसने क्या किया, उसके पास एंड्रॉइड फोन है, वही मैं बताना चाहती थी, भूल गई मैं टर्म, तो एंड्रॉइड फोन है, उसने लाइव उसका फोटो खींच के उधर अपलोड कर दिया, ऐसा ऑप्शन होना चाहिए। हो जाएगा ना मैम, वो दिया हुआ है आपको, ये दिया हुआ है, ये पीओडी अपलोड का जो ऑप्शन है ना, ये वाला, ये आपका मोबाइल, क्योंकि उसमें गलती कम होने वाला है ना, आप चूज फाइल करोगे तो हजार है, वही गलती हो ही सकता है, उसके बाद आपने अपलोड कर दिया, आपको डिलीवर मटेरियल डिलीवर दिखा रहा है, अल्टीमेट मटेरियल डिलीवर नहीं है, तो रॉन्ग हो सकता है ना। हो जाएगा मैडम, हाँ वही मैं बताना अभी सुनील, थोड़ा मेरा एआर रेल का क्या आउट चाहिए, तुम बताओ उनको। सर देखिए, इसमें बहुत सारा हम लोग का पॉइंटेड है, जैसे आप कंसाइनमेंट हम बुक कर रहे हैं, कस्टमर के पास से पिकअप कर रहे हैं, वहाँ से एक कस्टमर मेरे को 10 पॉइंट का भी मटेरियल दे सकता है, 1 पॉइंट का भी दे सकता है, उसको फर्स्ट में मेरे को लाना पड़ता है अपना लोकल हब में, जो स्टेट में है लोकल हब, फिर वहाँ से मटेरियल डिसाइड होता है कि किस किस हब के लिए भेजना है, डिलीवरी के लिए ना डायरेक्ट डिलीवरी के लिए जाएगा। तो उसमें मेरा कुछ मटेरियल फ्रेंचाइजीज के पास भी जाता है, जो हम लोग का सब लोडर है या को लोडर है उनके पास जाता है, तो उनके लिए एक लॉगिंग पोर्टल चाहिए जो वहां से वो ऑपरेट करे, उनके लिए जो मटेरियल मैं मूवमेंट कराऊंगा उनके पोर्टल पे शो होगा कि ये मटेरियल आज यहाँ इस ब्रांच से मेरे लिए निकला है। तो एक काम करते हैं ना प्रतीक जी, अपन सर से नंदी जी से ना एक शेड्यूल कर लीजिए, क्योंकि वो बेटर आपको नहीं, एक काम करेंगे सुनील सर, व्हाट वी विल डू, एक काम करेंगे हम लोग, नंदी जाके ना पूरा सॉल्यूशन आपको अभी तक जो समझे हम पूरा डिस्कस करेगा, ठीक है, उसको डॉक्यूमेंट करेंगे, उसमें जो गैप से फिल करेंगे, ये मैं नहीं चाहता कल प्रपोजल दें और सम स्कोप गेट लेफ्ट आउट, उसमें एपीआई इंटीग्रेशन, थर्ड पार्टी वेयरहाउस सिस्टम्स सब हम लोग करेंगे, फिर आप पिक एंड चूज कर लीजिएगा क्या करेंगे। बट मेरा एक ही कहना है, बिकॉज 350-400 इम्प्लीमेंटेशन मैंने लाइफ में किया है, बस लेट्स ट्राई टू गेट द बेसिक ट्रांजैक्शनल सिस्टम इनटू प्लेस, द अकाउंटिंग इनटू प्लेस, तो जीपीआरएस, वेयरहाउस, जो आपका हार्ट ऑफ ऑपरेशन है उसको पहले हम लोग स्कोप करते हैं, ये नहीं हम लोग डॉक्यूमेंट नहीं करेंगे, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से डॉक्यूमेंट सब करेंगे, डिलीवरी फेज वाइज करेंगे। बिल्कुल एग्जैक्ट सही कहा, बिल्कुल सही कहा।
एक्चुअली पीओडीটা কি কোলাটিকে রূপে দিছিল तो आप कर लीजिए, आप विजिट करेंगे उस हिसाब से आपको आप जो रिक्वायरमेंट बोले पीओडी से डेटा एक्सट्रैक्ट करना, मैं AIML का बहुत काम करता हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एबल, एंड आई एम वर्किंग विद टाटा पावर, टाटा, अदानी, सबके साथ। तो वहाँ वो डॉक्यूमेंट आता है, वो सिर्फ पिकअप करता है, ऑल्दो डिफरेंट यूज केस, डिफरेंट एरिया, बट कोल एंड उसके लिए करते हैं। आई विल टॉक अबाउट ऑल दोस थिंग्स, बट वो थोड़ा हाई एंड हो जाता है। तो लेट्स ट्राई टू फर्स्ट फिक्स अप द मेन थिंग, although we will put all the requirement into one place so that tomorrow we may not feel bad that we have left out some requirement. बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सरकार जी, मैं थोड़ा निकल रहा हूँ, मेरे लिए एक आदमी काफी टाइम से बैठा हुआ है। ठीक है, डन सर। ओके, थैंक यू फॉर योर टाइम सर। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। ओके ठीक है सुनील सर, और हम लोग एक काम करते हैं, शेड्यूल कर लेते हैं हम लोग का लाइव मीटिंग का। ठीक है, लाइव मीटिंग, हाँ इसको थोड़ा डॉक्यूमेंट करते हैं, थोड़ा सा व्हाइट बोर्डिंग करते हैं, उसके बाद फाइनल करते हैं स्कोप को। हाँ, नहीं तो सॉफ्टवेयर कभी भी पूरा नहीं कंप्लीट हो सकता है जब तक आप डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं करोगे। सॉफ्टवेयर अपडेशन चलते ही रहेगा, सॉफ्टवेयर कभी खत्म नहीं होता है अपडेशन। तो उससे अच्छा बैठ के एक बार बात कर लीजिए, और बात करके क्या क्या रिक्वायरमेंट है नोट डाउन कर लीजिए। हमारा भी ऑलमोस्ट है इसमें, मैंने भी देख लिया, कुछ नहीं है जो हमको रिक्वायरमेंट है, सुनील जी से बात कर लीजिए। निशा जी, आपका कोई रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट नहीं था, तो हमने बोला ठीक है जो है दिखाते हैं, सो दैट विल टेक ऑल योर। हाँ ठीक है, एक्चुअली ऑल ट्रांसपोर्टर का सेम ही होता है ना, तो सेम ही है। थोड़ा हम लोगों का जो चाहिए हम सुनील जी से आप ले लीजिए बात करके, और सॉफ्टवेयर अपडेशन कभी खत्म नहीं होता है मेरे हिसाब से। आप जितना काम करोगे उतना गलत निकल के आएगा, उतना अपडेशन चलते ही रहता है कस्टमाइज। श्योर तो कर लीजिए। ओके, चलिए, बाय ऑल ऑफ यू। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। थैंक्स सुनील जी, प्रियंका, थैंक्स जी। ठीक है सर, ओके, थैंक यू वेरी मच सर। बात करते हैं। मैं तेरे को आवाज भी दे रहा था, लाइट नहीं आई ना भाई अब तक। दो लोग का पेमेंट आया गया, किसका देख लेना उसको पहले। टेलीफोन नहीं पड़ा, लाइट हो देख ले भाई, बहुत देर चल रहा है, कभी बैंड बज जाएगी। हेलो सर, नमस्कार। ब्लॉग वाला पूरी बड़े से बोल रहा था, कंप्लेंट लिखवाया था सर। गोपाल शर्मा, मनको भाई शर्मा जी के नाम को मीटर है, गोपाल शर्मा लिखा होगा उसमें। नंबर तो ही रहेगा सर, थोड़ा जल्दी जी, थोड़ा जल्दी करवा दीजिए सर, क्योंकि मैं 2 घंटा हो गया लगा है, और जो काफ़ी समय से गोल है, हमको पता नहीं था कि गोल है कि वो, हम सोचे यार सबका होगा, करवाइए सर। हाँ 20-25 मिनट में आना है। हाँ 20-25 मिनट में, ठीक। 2 पेमेंट आया क्या? 3000 का मैसेज। क्या हुआ? खड़खड़ा रहा है
वो नींद के कारण होता है। जब नॉर्मल नींद होती है ना